So, thank you so much for joining today's session. We have our esteemed speaker, Dr. Kanak Soni, ji with us, and I am handing over the mic to him so that he can take up today's session, that is Naturopathy Hospital Management. Thank you so much, Dr. Kanak Soni. Namaste everyone. Thank you so much again, my respected and beloved senior, Dr. Vivek Bhartiya sir. And just like an elder brother always been, a guide and inspiration for all of us. I thank you for a beautiful introduction. And just I'm trying my best to heal and help healing the people. So that is our motto as a yoga and naturopathy physicians, and as a physician and as a human beings also. So I would like to start my session by praying and thanking the all those gurus who have been my inspiration, and for becoming a doctor and then for a naturopath, and right now also I am under a guru. So first and foremost to my father. He's a allopathic medicine practitioner in government of Rajasthan. He practiced, and Dr. Mahesh ji, and he has been my inspiration since my childhood when I was 3 or 5 years old, maybe. So I've been seeing him serving the people without any time, without any limit throughout his life till I was 18 or something when I joined SDM College of Naturopathy and Yogic Sciences, Ujre, by my choice. Even I had an option that time to join MBBS also, but I understood, experienced and understood the system of yoga and naturopathy. So I preferred to join at SDM, and that there, my gurus, I met Dr. Prashant Shetty sir. So he has been that time he joined as the principal, and throughout my 10 years journey at Dharmasthala and Ujre, he was the always been the motivating factor for me and for all of our college mates, basically. So Dr. Prashant Shetty sir has been a one of the best, we can say, the yoga and naturopathy practitioner and administrator, a very well and very good administrator, and a personality who is managing both the college and hospital at that time. Hospital Shantivana was that time also 500 bedded, and college was also like all the years were present. So he was very well managing, and we have learned. I'm happy to learn all the management skills under his guidance. And there, Dr. D. Virendra Hegde ji, who has been our always the guiding light for all the naturopaths, right from Dharmasala to everywhere in India. So I would like to, I'm always grateful to Dharmasthala Manjunath Swami Temple and Dr. D. Virendra Hegde ji, because he has always been taught me specifically a lot. I have learned a lot. And after in my college also, Dr. Shiva Prasad Shetty sir, who always been an inspiration in yoga learning, yoga therapy, and means all the specialized techniques of yoga. So it was an enormous learning from him also. Our that time our dean naturopathy, Dr. Sujata ma'am, Dr. Geeta ma'am, and all the faculties of SDM College of Naturopathy and Yogic Sciences. They were the building blocks for us, for me specifically, where I have learned and experienced and gained confidence most above all, that I can work as a physician or I can help any person in the healing process with the system, beautiful system of yoga and naturopathy, and spread it also. So and after coming, I joined, I did my MD also, continuing my BNYS in 2012, 2013. Then I continued 3 years for my MD in clinical naturopathy. So it was a wonderful experience and learning. And immediately I joined in 2016 as a medical officer come assistant professor at SDM College of Naturopathy. Okay, Specifically the critical patients. Are you? Huh. So that has been always means
affecting them seriously. Today's world, now I will speak about the today's world. So I've learned, I tried most about the all, I tried learning from each and everyone. It's yoga and naturopathy is not just one man. Everyone. Dr. Kanak, I think there is some connectivity issue going on. Um, if you can help us with that. There's some connectivity issue, I think. Yeah, actually current went, so Wi-Fi was on for a while. So what about today's aims and objective of this talk, my talk, like now 1 hour is there. So my aim is to put up my all the experience of the learning, like 13 years of clinical practice as a physician in all the best of the yoga and naturopathy hospitals. And second thing is how we look at the future for all my young generations of BNY's doctors and even the students, basically how you can actually plan from now only to build an uh, means best of the class yoga and naturopathy setup along with probably maybe the Ayurveda or integrative system. So my aim is to implement that learning that you all learn how to make a maximum in the minimum. Okay, maximum effective hospital in the minimum investment, or say let's say in the minimum place, whatever. सो आई मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये सेशन it should be more interactive. That's why I've not kept PPT and all. So I keep reading the PPT. I have kept it open. So I think many have joined already. So from all the places of India, all. So आप सब जो है अपना कैमरा थोड़ा बीच बीच में ऑन करके रख ले ताकि मुझे लगे कि आप सब हैं और and you have any questions in between, main question means you can ask in between, or at last we'll have a 10 minutes question and answer जहां मैं आपके जो प्रश्न है कि सर हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मैं बता पाऊं. ओके, सो आई वेलकम each one of you who are here for attending my session. I thank you each one of you. Jai Hind, Vande Mataram. So let us start. So building a unique and effective yoga and naturopathy setup in today's world. So there are two models basically. Okay. One model is outpatient department, which is OPD, which everyone can actually, as a naturopaths, registered doctors, BNYS doctors, we can start OPD. That is the first line. Like in government, what we see is primary healthcare system, healthcare, okay, PHC, then community healthcare, CHC. So these are the basics where every person is going in the nearby. So OPD is the best model in naturopathy. What I think for today also. So we have almost like maybe more than 20 OPDs of Patanjali Wellness. Okay, so all are running good, and it all depends on the doctor. First thing is which whatever you open, whether a OPD or an IPD or a daycare setup, whatever the setup we plan to for the clinical practice. So everything, most important part is the ability and capability and skills of a doctor. Like I am a doctor, so I should have a vision what
and how much I know and I can implement to my patient. And second thing is management capabilities. Management is the skill where actually you can off your mic. Someone is speaking in between, so you can off your mic. या सो एक्चुअली आई टू प्लान कि मुझे कितने पेशेंट्स को किस हिसाब से थेरेपी देनी है. सो दो मॉडल्स मैं आपको इस हिसाब से बताऊंगा बिकॉज वी आर एट पतंजलि वेलनेस ऑल्सो वी आर बेसिकली वर्किंग इन दीज टू मॉडल्स एंड बोथ आर सक्सेसफुल इन देयर ओन वे. तो बेसिकली हम नेचुरोपैथी डॉक्टर का एक चिंता ये रहती है कि हमें जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने जॉब्स हैं, कितने गवर्नमेंट जॉब्स हैं. सो लेट अस कीप दैट सेकेंडरी. Okay, it will come and things are becoming well. People are recognizing the system of yoga and naturopathy slowly, slowly. So first focus and how you can improve your practice, clinical practice, how you can learn and how you can plan building a very effective hospital, clinic based, OPD based, or IPD based. So that is my main talk for today. So let us start. So at Patanjali Wellness, how we had started that just I will give you under the guidance of Param Pujya Swami Ramdev ji and Shraddha Acharya ji. They had initiated a concept of integrative wellness, or we can call it as integrated pathy, where we Dr. Kanak, I think you got muted. Please unmute yourself. okay. So I was telling about the naturopathy hospital IPD and OPD model. So how we are running and under the guidance of Param Pujya Swamiji Maharaj and Param Shraddha Acharya ji, we have started Patanjali Wellness in 2021. Okay, just after the COVID, and this model has succeeded in its means validity to help chronic also. So that I will discuss. Okay. If you have any question, you can just raise it in between the session. Definitely. If you have any acute question, like now only we want the answer, sir. So like that, you if you are planning only a naturopathy hospital where you have yoga, naturopathy, and some basics Ayurveda, so one BNYS doctor is fine. One BNYS. Okay, even physiotherapy we learn during the BNYS, so that is also very helpful, and patients come for physiotherapy also and yoga therapy. So a doctor is needed. Second thing, most important for a clinical setup is therapists. So trained therapist. So there are two way of getting therapist. See, everywhere different therapist programs are running. Like our University of Patanjali, we are running 1 year course, practical course of DNYT, Diploma in Naturopathy and Yoga Therapy. In 365 days, a person, a male or female therapist, they learn every single therapy of naturopathy, panchakarma, physiotherapy, and even helping in the ozone therapy and all the aligned therapies like chiropractic, osteopathy, reflexology, everything, and yoga therapy, most above the all, and even some part of the diet. So that is the routine. That kind of therapist we are seeking as a physician to support us or to help us in our OPD or IPD setup. So most important is a doctor, which most of you are already a doctor, and a therapist. So male and female, one therapist is the basic. If you are starting a small clinic or OPD, or if you are planning a for large hospital or with some institute already running some naturopathy center and all, so you need more trained therapist. Or secondly, as a doctor, we learn every therapy by ourselves, just like massage. Swedish massage during our BNYS or during your internship, if you go to a good center like Patanjali Wellness Center, many of you have got training. So you need to you learn basically exactly the art of massage by J.H. Kellogg. So different calf massage, abdomen massage, full body Swedish massage, the Abhyanga, the Udvartana, the powder massage, the Ayurvedic part of the powder massage, then the Snehadhara, Potli massage, है ना? Like that we have rose honey massage, salt glow massage, and
cupping massage, acupressure massage. Like that, we have multiple types of massages, mainly where the therapeutic part is our Swedish massage. What we as a naturopathy doctors, we need to be thorough with. Because when we do not have the trained therapist, or we are not getting it, or they are very costly, like therapist, if you find a TATC done in NI in Pune, those therapists, because they are much trained, so they will be expecting a huge amount, but like 15 to 25,000 plus food and accommodation, okay, for 1 month. So that may be initially not cost effective for a physician who has started their clinic. So initially you can like get untrained fellow who are basically educated, so you can train them. So this is the training what you need to give as a physician regarding every therapy. So once we are thorough, so then only we can train the therapist. So like we have trained more than, we can say, more than 1,500 therapists within last 5 years, from 21 to till today, I can say, at the Patanjali. We have DNYT course running. We have short-term therapist course also, and 3 months like certificate program we are running, and we are training and developing each therapist holistically, because we are training them the basic of massage, all the movements of the manipulative therapies, then acupressure, then all the hydrotherapies, mud therapy, with proper explanation how actually we have to do it, and what is the process, pre-operative, operative, and post-operative. Everything is there in the manual. There is a book we have made, and I think it is out also. So there we have modules for every therapist, that they have to learn all these things during their 3 months. And even in DNYT for 1 year, it's a complete full-fledged course, recognized course by the university. So that therapist is the key. थेरेपिस्ट कैसे अच्छा काम करेगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर. Because if you are thorough, then you can make them more thorough every day by day, so the patient gets the maximum benefit out of the therapy. Okay, so that is the first part. So one doctor and therapist. Third one, if you are planning like small OPD or OPD with diet, that is more required in the market today. So even OPDs like you have seen at NIN Bapu Bhavan, likewise, are also OPDs, like we have one in Faridabad, and few OPDs, they have started the diet also. So patients are coming, see, OPD model, why it is easier for everyone, each one of us. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओपीडी के लिए हमें कितना चाहिए स्पेस, हमें चाहिए, देखिए, एक कंसल्टेशन रूम डॉक्टर का. सो एक कंसल्टेशन जहाँ पे हमारा वीएनवाईएस डॉक्टर बैठ रहा है ना, घर पे हो या अपने पास में एक बिल्डिंग ले लिया, रेंटल ले लिया है, 10-15 हजार में अच्छी बिल्डिंग या एक पूरा बंगलो मिल जाता है अच्छे से, जहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं. इट्स नॉट ये, उसके अलावा आपका बिजली का खर्चा, मे बी इट इज अ सोलराइज्ड हाउस, और यू हैव एडेड द सोलर पावर प्लांट. सो उसमें आपका, क्योंकि सब इंस्ट्रूमेंट्स में जितना हमारा अंडर वाटर मसाज हो रहा है, सोना बाथ, स्टीम बाथ हो रहा है, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो एनर्जी कंजप्शन इज मोर. सो solarized is a better option. So you can take a rental, or you can start at your own home. If you have like space is required, minimum 2,000 square feet area, or in our OPD setup, I am telling you 2,000 to 5,000. If you are planning for a big, like 50 patients, up to 100 patients in the OPD or daycare in a day, so you can plan for 5,000 to 15,000 square feet. So that is a basic area for one building, where you can start a good, where you can get profitability also. ROI is attained within like 2 years or 3 years. So that also you can do. So that is the first thing, consultation room. Rental building you can have, or you can have like solarized building, or you can have your own home where you can set up your own clinic, small clinic. So that is the first thing. And second is the instruments, about the naturopathy instrument. So doctor, therapist, consultation room, naturopathy instrument. It depends on you what exactly, how many instruments you want to do. But basically, if some patient is coming for, suppose, obesity or diabetes or hypertension, so what in all instruments you see for a detox and all these patients, or pain problems, any kind of vatro, where patient is having a knee pain, back pain, cervical spondylosis, or any kind of body physical pains.
सो उसमें क्या क्या चाहिए आपको, आप ये देखें, उसके हिसाब से आप एक एस्टिमेट बना सकते हैं कि आपका खर्चा कितना होगा, हाउ मच अमाउंट यू नीड टू स्टार्ट योर ओन क्लिनिक विच इज इफेक्टिव। एंड अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, आपके पास अच्छे थेरेपिस्ट हैं, आपके पास अच्छी स्पेस है, गुड स्पेस, गुड वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, एंड यू आर गिविंग अ गुड इफेक्टिव थेरेपी फॉर अ पेशेंट, सो आप उसको कितना खर्चे में स्टार्ट कर सकते हैं, और कितना खर्चा, कितना यू कैन अर्न मंथली बेसिस आउट ऑफ इट। ओके, सो आप एक देखिए, बेसिकली अब हमें क्या चाहिए। अब आपने एक मेल एक फीमेल थेरेपिस्ट रखा है, सो बेसिकली यू नीड मिनिमल ऑफ 2 गुड रूम्स। गुड रूम्स मीन साइज कितना हो सकता है, लगभग 15 by 15। सो वी आर मेड होलिस्टिक रूम मॉडल at Patanjali Wellness, where we are basically giving almost, except hydrotherapy and some other therapies, almost all the therapies in one room itself. It's an integrated एंड होलिस्टिक थेरेपी रूम। उसमें क्या क्या है उसका मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, वो आप नोट भी कर लीजिए ताकि आपको एक पूरा एक विजन डेवलप हो जाए, और इससे आप कुछ सीखें, इस 1 घंटे से आप अपनी लाइफ के लिए कुछ सीख पाए। तो होलिस्टिक थेरेपी रूम का क्या स्पेस रिक्वायर्ड है, आप देखिए, लगभग 7 फीट का हमारा मसाज बेड आता है, जो पंचकर्मा बेड होता है, दैट इज अ बेटर। उसमें आप मैट्रेस रख ले, जो पंचकर्मा बेड है, और उसमें आपका आगे हेड की भी स्पेस होती है, और जहां पे आप शिरोधारा स्टैंड लगा के, या वॉल में शिरोधारा स्टैंड लगा के, या ऑटोमेटिक शिरोधारा मशीन भी आती है आजकल, उसको ऐड करके आप उसमें ये सारी थेरेपीज दे सके। ठीक है, even the panchkarma therapies, even the naturopathy, all the types of massages and other treatment like compresses। ओके, सो आपको एक 7 7 फुट का ये है, आपका 2.5 फीट का ये स्टैंड होता है। एक स्टीम बॉक्स चाहिए, स्टीम बॉक्स भी आपको स्पेस पता है, लगभग 4 बाय 4 का स्टीम बॉक्स होता है। हेलो, हाँ, तो आप पहले सुन लीजिए फिर आप क्वेश्चन करिएगा। तो अब कितनी स्पेस चाहिए आप सोचिए। उसमें एक वॉशरूम होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एनिमा दे रहे हैं पेशेंट को, या बस्ती दे रहे हैं, या फिर इवन ड्यूरिंग मसाजेस पेशेंट हु इज हैविंग अ कॉन्स्टिपेशन, और who are flatulence like this, digestive issues, or some are from IBS, so immediately they need to go to the washroom in between, okay, for urination or maybe for आपका वॉशरूम के लिए। तो आप ये देखिए कि आपको जो होलिस्टिक रूम है उसमें क्या क्या चाहिए। अब आपका होलिस्टिक रूम हो गया, एक कमरा है विद गुड स्पेस, लाइक 10 by 12 मिनिमम, और 15 by 15, और 15 by 12 समथिंग। सो दिस इज द स्क्वायर फीट लेंथ एंड ब्रेथ आई एम टेलिंग यू। उसमें कॉर्नर में एक आपका हो गया वॉशरूम, है ना, उसमें शावर होना कंपलसरी नहीं है, ओनली द टॉयलेट सीट इज इनफ। सेकेंड थिंग इज, अंदर क्या क्या हो गया रूम के, एक मसाज टेबल हो गई, प्रिफरेबली द पंचकर्मा टेबल। और आजकल एडवांस में क्या आ रही है, आप सबको पता होगा, एडवांस में देर इज अ हॉलिस्टिक मसाज टेबल, लगभग 65,000 के आसपास आ रही है, बहुत सारी कंपनीज बना रही है। दैट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, लाइट स्टेनलेस स्टील, विद गुड वारंटी, रस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, हर तरह से उसमें है, और हल्की भी है। उसमें क्या क्या फायदा है हॉलिस्टिक मसाज टेबल में, उसमें स्टीम बॉक्स, स्टीम भी उसमें इनबिल्ट है। सो वी कैन एक्चुअली डाउन, नीचे से आप ऊपर कर दें मसाज जिस टेबल पे, क्या उसी में पेशेंट को, लाइक जस्ट लाइक द रिक्लाइनिंग स्टीम बाथ, वी कैन गिव द स्टीम। सो ऑलमोस्ट 80% ऑफ आवर थेरेपी जो मसाज से रिलेटेड है, या हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस है, so we can give it। so these two types of models we are working at the massage table। और क्या क्या आ गया इसमें एडवांसमेंट, एडजस्टेबल। दिक्कत क्या होती है, अगर टेबल थोड़ी नीचे है हो, आप सोचो 4.5 फीट हाइट पे हो या 4 फीट पे है, अब थेरेपिस्ट की हाइट में डिफर, और आप एज अ डॉक्टर योर हाइट में डिफर, गर्ल्स में भी 5.5 और 5.2, है ना, बॉयज की हाइट जैसे 6 फीट या 5.10। सो और थेरेपिस्ट में भी सेम ही है। तो उस टेबल पे अगर हम दे रहे हैं, एक फिक्स साइज की टेबल है, तो दे मे गेट, द थेरेपिस्ट में नॉट बी कंफर्टेबल इन गिविंग ऑल द मैनिपुलेटिव मूवमेंट्स वेरी इफेक्टिवली। सो टेबल आप सोचिए, टेबल हैज टू बी, नाउ जो नई आ रही है, दैट इज हाइट एडजस्टेबल, okay, or with the box, with the space। Okay, so two models I am discussing here, that is very important for any naturopathy setup which you are planning to build। Okay, so two types of model, one is holistic massage table with adjustment, another one is abhyanga, the table with wooden table, with all the facilities of snehadhara, shirodhara, all those things with the shirodhara stand। two types of tables are very effective। एंड नॉर्मल अपनी टेबल भी आप यूज कर सकते हैं, कितने में बनती है उसका भी मैं आइडिया देता हूँ।
जो बेसिक मसाज टेबल है, अगर आप बेसिक ले रहे हैं विद मैट्रेस विद 4 लेग्स एंड स्टैंड, सो दैट इज अराउंड 15,000 to 25,000 बेसिक। अगर आप उसको बनवाएं, और अगर आप वेंडर से लेते हैं तो भी 15 to 40 के बीच यू कैन गेट अ गुड टेबल। एंड वंस वी गो फॉर द पंचकर्मा टेबल, इट इज अराउंड 45K, 45,000 में यू कैन एक्चुअली गिव दैट टेबल ऑल्सो। सो इसमें क्वेश्चन आया कि आप लाइसेंस टू हैं पंचकर्मा। देखिए, पंचकर्मा और नेचुरोपैथी में बेसिक डिफरेंस है। वी कैन गिव द मसाजेस बिकॉज दैट what and all we have learned in our curriculum, that and all we can actually implement to the patient. Okay, so we have actually in our manipulative therapy third years, we are learning most of the type of massages, even the abhyang and all, abhyang powder massage, dry powder massage, that and also a part of our syllabus curriculum. If you see the university curriculum, so whatever is there in the curriculum, that and all, if you have learned, you can actually practice under your clinic. Yes, and agar nahi hai, so you can add an Ayurveda consultant to your clinic where BMS doctor, so you can make a integrative clinic. So we as a Patanjali, we are doing the integrative model of the clinic. Yes, these tables they have shown. So this is the advanced table where this table is holistic table. This one, if you see the model, इसमें क्या क्या हो रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आप दे सकते हैं थेरेपी। अब इसमें आपकी जो टेबल है, ये विद ऑटोमेटेड जो है शिरोधारा स्टैंड, इस स्टील वाली टेबल है। स्टील में क्या फायदा है, लकड़ी में देखो आप तेल करेंगे उसमें वुड में सारा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाती है वैसे तो जो एक्चुअल एक्चुअल वुड है। इस टेबल में फायदा क्या है, स्टील है, स्टेनलेस, तो ये खराब नहीं होगा, स्ट्रांग है। तो आपका पेशेंट 100 सवा 100 किलो तक का है, तब भी वो इसमें लेटेगा और स्ट्रांग रहेगी। वो आप उसको मसाज देंगे तो उसमें ये नहीं कि अब देखिए लकड़ी की टेबल में टूटने का चांस होता है कि आपको 125 किलो का पेशेंट आ गया, और तो इसकी कैपेसिटी जो रहती है इट्स अप टू 190 और 200 kgs वेट बियरिंग कैपेसिटी। ओके, और क्या है, देखिए इसमें 2 हुक्स लगे हुए हैं। हियर पेशेंट, आप पेशेंट ने अपने पैर लगा लिया, आपने उसके टांग लिए, यू कैन गिव बस्ती और एनिमा। आप नीम पानी का एनिमा दे रहे हैं, त्रिफला का दे रहे हैं, नॉर्मल वार्म वाटर एनिमा दे रहे हैं, छाछ का एनिमा दे रहे हैं कोलाइटिस पेशेंट को, और शीर बस्ती दे रहे हैं, दूध का जो आपका दूध, सेंधव, शहद और इन सब का। तो ये सब आप इसमें अच्छे से दे सकते हैं। इसमें आपने मैट्रेस रख लिया, यू कैन गिव द स्वीडिश मसाज, यू कैन गिव द अभ्यंग, यू कैन गिव द उद्वर्तन। एंड मैट्रेस हटा दिया, यू कैन गिव द स्नेहधारा, यू कैन गिव द शिरोधारा, है ना, यू कैन गिव द परिशेक। सो दिस, अब इसमें एक फायदा क्या है, आप ये देखिए, ऑटोमेटेड शिरोधारा मॉडल इज एडेड। तो शिरोधारा को अब आप नेचुरोपैथी में क्या कहेंगे, नेचुरोपैथी में देखिए ऑयल कॉम्प्रेसेस हमारे कॉन्सेप्ट है। ऑयल कॉम्प्रेसेस आयुर्वेद में बोलते हैं पिच्चू। ओके, एंड ऐसे ही आप जो है, इवन दिस ऑयल, this also can be given as a part of the therapy. अब this is automated शिरोधारा मशीन एंड स्नेहधारा मशीन। इसमें आपने 2 लीटर जो भी तेल एडवाइस किया है, भले आपने कोकोनट ऑयल किया है, छाछ किया है, हम यहाँ पे छाछ से देते हैं हाइपरटेंशन पेशेंट को तक्रधारा। वी गिव मिल्क, दूध से देते हैं हम किसको, पेशेंट्स हु आर नॉट, हु आर हैविंग एनी एलर्जी विद द ऑयल्स और having any psychosomatic disorders. So different types of shirodhara or head oil massage can be given in the naturopathy also. So in this model what you are doing, मसाज दिया आपने, स्वीडिश मसाज दिया भले ही, उसके बाद आपने इस बॉक्स को बंद कर दिया, द यू हैव क्लोज द बॉक्स एंड ऑन द स्टीम। अब हम यहाँ पे देखिए मेडिकेटेड स्टीम का एक कॉन्सेप्ट है व्हाट वी आर गिविंग। तो जिसको जो डिजीज है उसके अनुसार स्टीम, जैसे सिर्फ ओबेसिटी है, डिटॉक्स है, तो हम दशमूल का काढ़ा आता है अपना, पतंजलि का भी आता है और मार्केट में भी आता है, तो वो देते हैं। इसके अलावा किसी को स्किन डिसऑर्डर है, सो वी ऐड कायाकल्प क्वाथ टू द स्टीम, अपना स्टीमर जो है उसमें। और उसके अलावा किसी को पेन ही है, बहुत ज्यादा वात रोग है, पूरा बॉडी में स्टिफनेस है, पेन है, मसल स्पैज्म है, सो वी गिव पीडांतक क्वाथ। सो नॉर्मल स्टीम ऑल्सो यू कैन गिव, यू कैन ऐड सम नीम लीव्स फॉर द स्किन प्रॉब्लम्स, or you can add this. So this is basically a holistic table, which is now all doctors are preferring more, BNYS doctors. Why? Because you are able to give more than 100 therapies in that. All types of massages, oil वाले जो हो गए, अपने compresses आप दे सकते हैं, भाई बस्ती जो होती है ना, पिच्चू दे सकते हैं आप, स्नेहधारा, परिषेक दे सकते हैं, और यू कैन गिव जस्ट द एप्सम सॉल्ट वाटर बाथ ऑल्सो, है ना। तो इतनी सारी आपकी थेरेपीज आप इसमें दे रहे हैं। मेडिकेटेड स्टीम आप दे सकते हैं, इवन लोकल स्टीम। लोकल स्टीम इसमें आपका एक जेट आता है,
जिसमें आपने जो स्टीमर है उसमें आपने ऐड कर लिया, तो यू कैन गिव द लोकल स्टीम टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ पेशेंट। सो इवन आप इसमें आप शिरोधारा दे पा रहे हैं, है ना, हेड कॉम्प्रेस दे पा रहे हैं, बैठा करके आप हेड मसाज, नेक मसाज, शोल्डर मसाज दे पा रहे हैं, है ना, इसमें आप एनीमा सारे दे पा रहे हैं। तो आप ये सोचिए पाउडर मसाज दे पा रहे हैं, वाइब्रो मसाज नेचुरोपैथी में जो अपने वाइब्रो मसाज होता है वो भी हम दे पा रहे हैं। इसमें आप इवन जैसे आपके पास पेशेंट है सिर्फ एक्यूपंक्चर के लिए आया है, तो आप इसमें एक्यूपंक्चर दे सकते हैं। आपके पास पेशेंट आया एक्सरसाइज थेरेपी के लिए, सो यू हैव टू गिव द एक्सरसाइज टू द नी जॉइंट और स्ट्रेचिंग, तो वो भी आप दे सकते हैं। कोई पेशेंट आया कायरोप्रैक्टिक, वैसे मैं एडवाइस करता हूँ कायरोप्रैक्टिक टेबल अलग से आती है, एडजस्टेबल टेबल। If you have learned chiropractic and osteopathy, that is an add-on and that is very good skill for a naturopath physician, है ना, आप अच्छी जगह उसको ट्रेंड करें, बहुत सारे आजकल सर्टिफिकेशन कोर्स चल रहे हैं। इवन अवर NIN Pune is organizing the workshop for chiropractic and bone adjustment and craniosacral therapy, so that is very good actually to learn. So उसके लिए फिर स्पेशलाइज टेबल्स हैं वो आप अलग से रख सकते हैं। सो माय आइडिया इज गिविंग यू अ कॉन्सेप्ट अबाउट द थेरेपी रूम, द होलिस्टिक थेरेपी रूम, जिसमें आप अलग अलग ना करके, जैसे आप पहले के आप नेचुरोपैथी हॉस्पिटल आप देखेंगे तो एक साथ टेबल्स लगे बड़े हॉल में, जहाँ पे आपका उसमें मसाज भी हो रहा है, उसमें आपका हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस, गर्म ठंडा सेक, या GH पैक या किडनी पैक या पेल्विक गर्डल पैक, जो भी अपने हाइड्रोथेरेपी या मड पैक, ये सब हम उसी में कर रहे हैं सेम टेबल पे। दैट वाज ओल्ड स्टाइल ऑफ नेचुरोपैथी एंड टेबल दैट इज वेरी कॉमन थ्रू आउट द इंडिया वेर एवर देयर नंबर्स इज मोर। बट वेंस वी आर गोइंग फॉर द इंडिविजुअल केयर ऑफ अ पेशेंट, लाइक आप एज अ डॉक्टर चाह रहे हैं एक पेशेंट को मैं इतना अच्छा दूं कि इसको बहुत जल्दी आराम मिले और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। सो वंस वी गो फॉर द एक्सपीरियंस, आपने उस पेशेंट को 1.5 घंटे का एक थेरेपी स्लॉट दिया है, OPD और IPD सुबह का, और 1.5 घंटे का आपने इवनिंग में, आफ्टरनून में, इतना आपने उसको 90 मिनट्स के स्लॉट्स दिए। सो दैट patient should completely get all the effectiveness of that whole slot। क्या क्या देते हैं हम 90 मिनट्स में? लाइक वी गिव ऑयल कॉम्प्रेस और कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, सर्वाइकल लंबा स्पॉन्डिलोसिस पेशेंट है, शिरोधारा और दिस धारा वी कैन गिव, है ना। इट इज वेरी इफेक्टिव इन ऑल द साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस। शिरोधारा is actually working like a yoga. If you give it with music therapy or yoga nidra or meditation, patient feels very much energized and relaxed mentally after the therapy of the 40-45 minutes. So that also you can add. So these and all are the therapies. And vibro massage I was telling, so we have G10 or G5 vibrator, जहाँ पे आप टिलकम पाउडर डाल के वी गिव द फुल बॉडी वाइब्रो मसाज। ओबेसिटी में एंड पेन में इट इज वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। ओके, सो इसके अलावा सारे कॉम्प्रेसेस आ गए, हाइड्रोथेरेपी के लिए मैं अलग आऊंगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेन रूम विच आई वाज टेलिंग यू एज एन इन अ नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, वन गुड थेरेपिस्ट, वन गुड डॉक्टर एंड दिस थेरेपी होलिस्टिक रूम। इसमें आप लगभग लगभग सारी थेरेपी दे रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोथेरेपी यू आर गिविंग ऑल टाइप्स ऑफ थेरेपी। इसमें आगे अच्छा आजकल एक पोर्टेबल टेबल्स आ गए हैं, यू कैन ऐड सम पोर्टेबल टेबल्स, जहाँ पे आप कायरोप्रैक्टिक पोर्टेबल चेयर आ गया फोल्डिंग वाला, जिसमें आप सिटिंग करके भी आप उसको मूवमेंट्स दे सकते हैं, है ना। इवन यू कैन गिव द फिजियोथेरेपी। सी इफ यू हैव टू ओनली 2 रूम्स, आपके घर में 2 रूम है, तो इसी रूम में आप, आपके पास इंस्ट्रूमेंट, आजकल फिजियोथेरेपी में हॉलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट आ गए, उसमें आपका IFT, टेंस, अल्ट्रासाउंड और लेजर, ये सारे एक साथ आते हैं। या फिर वैक्स थेरेपी, जिसमें आप वैक्स निकाल करके, नी पेन है, एल्बो पेन है, रिस्ट जॉइंट पेन है, तो इन डिसीज में आप वैक्स थेरेपी भी देते हैं। इवन लेप, आप लेप भी इसमें दे सकते हैं, जैसे आपने फेस पैक दिया या किसी को गंजी टर्मरिक लेप दिया स्किन डिसीज में, नीम लेप दिया, सो ऑल दोज लेप हर्बल फॉर्मुलेशन वो आप यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हैं। देन यू कैन आस्क द पेशेंट टू सिट इन द बालकनी और इन द माइल्ड सनलाइट फॉर गेटिंग द इफेक्ट। सो इतने सारे प्रोसेस, और इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट चाहिए, स्मॉल किचन, लाइक वन टेबल वेयर यू हैव एन इंडक्शन, क्योंकि जितने अभी विंटर्स में हम देते हैं तो वी गिव वार्म ऑयल। आप भले आप उसको आप दे रहे हैं हम सरसों के तेल से, तिल के तेल से, या अपने हर्बल ऑयल जैसे महानारायण ऑयल है, पिरांतक ऑयल है, जिससे भी हम थेरेपी दे रहे हैं, वी आर पोटली मसाज दे रहे हैं हम, फुल बॉडी पोटली, सो वी आर यूजिंग पिरांतक ऑयल, और अपना सरसों के तेल से हमने पेन ऑयल बनाया है या एंटी कोल्ड ऑयल बनाया है हमने, तो उससे वी आर गिविंग थेरेपी। इन दिस टेबल वी कैन गिव द हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस टू द चेस्ट, और OGGT चेस्ट कंप्रेस, ऑनियन जिंजर गार्लिक टर्मरिक चेस्ट कंप्रेस, जो कि हम अस्थमा ILD इन पेशेंट में देते हैं। सो जस्ट आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि बेसिकली इन वन रूम ऑल्सो, जस्ट गेट एन आइडिया। आप सब अभी कोई पढ़ रहे हैं, कोई ने अपनी क्लिनिक स्टार्ट करी है, किसी का आपका इनिशियल स्टेज है, कोई और अच्छा उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो
नेचुरोपैथी हमें एक मिसकॉन्सेप्ट दिया गया है कि यू नीड अ बिग हॉस्पिटल, बिग इन्वेस्टमेंट, यू नीड 10 करोड़ रुपीस। नॉर्मली यही बताया जाता है कि आपको पास 10 करोड़ होने चाहिए कि अगर आपको नेचुरोपैथी में नाम करना है, बीएनवाइस डॉक्टर होके, तो आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट। नेचुरोपैथी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बेस लेवल, फ्रॉम अ कॉलोनी लेवल। और आपकी अगर बिल्डिंग है, 50-60 हजार लोग आसपास में रह रहे हैं, तो आप उस बिल्डिंग में भी इतना छोटा सेटअप करके भी यू कैन जस्ट स्टार्ट। just when you start giving the result, you can always have a scope for मीन्स उसको बढ़ाने का हमेशा आपके पास स्कोप है। आप 1 रूम से 2 रूम करें, 2 से 10 रूम करें, यू कैन हैव अ बिग प्रॉपर्टी। इफ यू आर गिविंग द रिजल्ट, यू विल गेट इन्वेस्टमेंट। देन में भी बहुत सारे भामाशाह हैं, हमारे बहुत सारे ट्रस्ट हैं, हर जगह हैं, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। सो दे आर इंटरेस्टेड, बट इफ यू आर गिविंग a qualitative result on less number of patient, then you will get a ample of opportunity to treat more amount of people and increase your capacity of your hospital. So that is a capacity building. Okay, so you got an idea. Ab next is the hydrotherapy. तो हाइड्रोथेरेपी में, जल चिकित्सा में हमें कितना स्पेस चाहिए, और बेसिकली क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि हम पेशेंट को कम चीजों में ज्यादा फायदा दे सके। दैट इज द क्वेश्चन व्हाट एवरी नेचुरोपैथ गेट्स। सो मेरे को अभी 18 साल लगभग हो गए हाइड्रोथेरेपी और पेशेंट देखते देखते। तो क्या क्या चाहिए, देखिए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हिप बाथ, है ना। वी आर ट्रीटिंग ऑलमोस्ट, आप कहें कोलाइटिस हो गया, पाइल्स फिशर फिस्टुला हो गया, है ना, अपना इनफर्टिलिटी हो गया, है ना, पीसीओएस हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस, सो मेनी ऑफ द डिसीजेस, एंड प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सो मेनी डिसीजेस, दिस हाइड्रोथेरेपी इज हेल्पफुल, मेनली द हिप बाथ। तो हॉट हिप बाथ, hot and cold hip bath, or cold hip bath for obesity and constipation. This is, we are seeing the result pre and post very immediate also, and hip bath is a very much। तो hip bath कितने चाहिए आपको? 2 टब्स। कितने के आ जाते हैं? आप मान के चलो 6 हजार से लेके 25 हजार के बीच, बहुत अल्ट्रा कुछ मॉडर्न आप हिप बाथ ले रहे हैं तो 25-30 हजार में आपका आ जाता है। तो 2 टब आपको हिप बाथ चाहिए। हिप बाथ में क्या वेरिएशन आ रहे हैं आजकल? 3 in 1 और 4 in 1 इज कमिंग। सो हिप बाथ में आपके जेट लगा दिया स्पाइन का, तो हिप बाथ में आपका हो गया हिप बाथ, स्पाइनल स्प्रे। ओके, ये तीनों चीज एक साथ हो गया। और सिट्स बाथ, ठीक है, फ्लोइंग हिप बाथ जो है। तो ये सारी चीजें हमारे एक मॉडल में होगी। तो 2 हिप बाथ है, किसी को आपने पेशेंट को हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ देना है, आपको ऑल्टरनेटिव हिप बाथ देना है विद एप्सम सॉल्ट और विद नीम वाटर, सो यू कैन गिव टू अ पेशेंट। ओके, तो गॉट एन आइडिया। So first most important therapy in naturopathy, in hydrotherapy is hip bath you must have. Second is the immersion bathtub, और यू कैन ट्राई फॉर, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इमर्जन बाथ टब आ जाता है। आप देखिए आजकल पोर्टेबल टब आ रहे हैं 8 से 15 हजार के बीच, जो चाइनीज आ रहे हैं, जिसको आप फोल्ड करके खोल दें और हॉट वाटर टेम्परेचर वो मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद, क्योंकि कोल्ड में कोई दिक्कत नहीं आती, टेम्परेचर मेंटेनेंस चाहिए रहता है हमेशा हॉट में, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द न्यूट्रल इमर्जन बाथ और न्यूट्रल हाफ बाथ विद एप्सम सॉल्ट। उसमें एप्सम सॉल्ट भी डल रहा है आपका, या फिर नीम बाथ हो गया आपका। तो देयर यू आर एडिंग नीम और एप्सम सॉल्ट और अपना नॉर्मल सॉल्ट, बेकिंग सोडा इन द दैट वाटर। सो देयर वी नीड अ स्पेशलाइज्ड टब जिसका क्वालिटी अच्छा हो, जिसका एकदम से पॉलिश ना उतर जाए, और जिसका वो दरारें नहीं आ जाए, खराब नहीं हो जाए वो, अगर फाइबर है तो। सो यू कैन मेक ऑलवेज प्लान फॉर, अगर आप परमानेंट बनाना चाह रहे हैं तो वी हैव अ मॉडल्स ऑफ सीमेंटेड बाथ्स ऑल्सो, बट आजकल फाइबर वाले पोर्टेबल वाले अच्छे आ गए हैं, तो ये आप बिल्कुल रख सकते हैं। सो इमर्जन बाथ यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक, और अगर आपको हॉलिस्टिक चाहिए यू कैन ऑलवेज गो फॉर द डिलक्स अंडर वाटर मसाज टब। उसमें क्या है, लगभग 350 से 500 जेट्स हैं अंदर, ठीक है। और जब आप चाहें कि यूज नहीं करना है, वो जेट्स को आप बंद रखें, यू कैन ऑलवेज यूज दैट टब एज ए इमर्जन बाथ टब। ओके, सेकेंड थिंग क्या है उसमें, यू हैव अ डुश, उसमें कनेक्टिंग होज है और डुश है। तो पानी के अंदर आपने एक व्यक्ति को लेटाया, उसके नेक पे सपोर्ट है ऑलवेज, है ना, अच्छी स्पेस है, मतलब 7 बाय 4 और 6.5 बाय 3.5, ये साइज के आते हैं अपने डिलक्स अंडर वाटर मसाज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन माई एमडी इन क्लिनिकल नेचुरोपैथी रिसर्च टॉपिक वाज न्यूट्रल एंड कोल्ड अंडर वाटर मसाज, द डिफरेंस, physiological difference. So I have seen that is very good for reducing weight, reducing body pains, muscle spasms, and constipation, all the physical ailments, even the insomnia, है ना, diabetes, and
every disease, hypertension, cold underwater massage, that is very effective treatment. So आप underwater massage tub तो रखे ही रखें, जकूजी वगैरह तो क्या लग्जरी हो गया, you are not getting actually the pressure, है ना. Nowadays we are getting ozonized, all these hydrotherapies ozonized. तो उसके अंदर क्या है, एक छोटा सा ओजोनाइजर लगा हुआ है, और जो पानी है उसके अंदर आपकी ओजोन आ रही है, तो ओजोन थेरेपी इज ऑल्सो वी आर डूइंग अलोंग विद द हाइड्रोथेरेपी. सो एयर थेरेपी प्लस वाटर थेरेपी इंक्लूडिंग, एंड कलर थेरेपी. सो आजकल जो एडवांस मशीन आ रहे हैं, अपने टब्स आ रहे हैं, उसमें इवन द लाइट्स आर देयर. सो यू नीड, यू नो दैट ब्लू लाइट इज गुड फॉर insomnia, red light is good for the pain, so infrared IRR. So that and all also we are developing in the naturopathy. Even at Patanjali we are doing it with IIT Roorkee and our university, Patanjali Research Institute. We are trying to develop the new models which actually, which is the demand for the market today. Okay, so I was just telling you, hip bath, underwater massage tub और immersion bath. थर्ड वन इज आर्म एंड फुट बाथ इज ओके, 10-15 हजार का आ जाता है, एक रखना चाहिए आपको. उसके बाद हो गया अपना और क्या क्या हो गया, स्पाइनल स्प्रे सिटिंग वाली अच्छी है. जैसे आजकल लोग आते हैं, दे आर यूजुअली ओबेस, सो reclining steam bath is not for everyone, they are not able to lie down और बहुत ज्यादा उनको बैक पेन है. सो सिटिंग चेयर, जस्ट लाइक अ चेयर, लॉन्ग चेयर, उसमें सारे आपके जेट्स लगे हैं पीछे, है ना, और यू कैन क्लोज द जेट, हाइट उसकी 6 फीट तक की है, तो उसमें आप ऊपर के जेट्स बंद कर सकते हैं. इवन पेशेंट विद लो हाइट और लेडी विद ओबेसिटी एंड ऑस्ट्रोआर्थराइटिस नीज, जो नीचे बैठ नहीं सकती, और जेंट्स, उनको भी आप उसमें बैठा करके स्पाइनल स्प्रे दे सकते हैं. तो सिटिंग स्पाइनल स्प्रे आई प्रिफर as a therapeutic treatment for all the spinal related disorders, spine related, and for hypertension and all those things, we can actually go for it. Epilepsy, Parkinson's, so many it is, sciatica, even that also. Spinal spray is very good. So these 3-4 are the basics. And if you want to go for advanced and you have the amount to start, so you can add on Vichy shower and other therapies, Whirlpool bath, that is very effective. सो आप उस पर जा सकते हैं. तो अब नॉर्मल बेसिक खर्चा कितना हुआ आप ये सुनिए, 15-15-30 हजार. उसके बाद टब बाथ जो है नॉर्मल तो 40-50 तक आ जाता है, पर अगर आप जेट वाला ले रहे हैं, अंडर वाटर मसाज डिलक्स, तो इट कम्स और 2 to 3 लाख से समथिंग. तो स्टार्ट हो जाता है 1.5 से और 3 लाख तक अच्छा आ जाता है ना. तो दैट इज द सेकेंड थिंग, वी नीड अ बेसिक हाइड्रोथेरेपी स्ट्रक्चर. थर्ड थिंग, फॉर naturopaths we need colon hydrotherapy. So we are the only doctors who are advocating and basically giving good results with colon hydrotherapy. तो आजकल कोलोन की मशीन आने लग गई है 1,80,000 से, और अच्छी, बहुत अच्छी मशीन लेंगे जो इंडियन मेड है और विच इज मोर एडवांस्ड ऑटोमेटिक, सो दैट इज कमिंग अराउंड 4.25 lakhs. So that is the range what I am telling you. आप उसके अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन भी कर लें कि आपको कितना बजट चाहिए कि आप एक छोटा सा सेटअप, खुद का क्लिनिक आप स्टार्ट कर सके, इसी को आप एक्सपैंड करके बड़ा हॉस्पिटल बना सकते हैं. सो आइडिया इज, आप सीधा बड़ा ना सोच करके एक छोटे मॉडल से स्टार्ट करके एक बड़े पर जा सकते हैं. और ये छोटा क्लिनिक यू कैन टेक लाइक जस्ट पतंजलि वेलनेस फ्रेंचाइजी वी आर गिविंग. सो एट योर प्लेस यू हैव 5,000 स्क्वायर फीट स्पेस, यू कैन टेक पतंजलि वेलनेस फ्रेंचाइजी, है ना. इसी तरह से और भी, जस्ट आई एम टेलिंग यू द एग्जाम्पल. तो ये आपने स्टार्टअप किया. कोलोन थेरेपी इज वेरी मच इन डिमांड, and most of the patients are having gastric issues, flatulence, constipation, chronic constipation, IBS, है ना. इवन colitis भी initial stage है, तो colon is always helpful for the cleansing part. Okay, so this is very important to have a colon therapy room. उसमें छोटा सा रूम चाहिए विद ऑटोमेटिक, इसका टेबल आता ही है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक अटैच वॉशरूम चाहिए. इतना छोटा सा सेटअप इज, बट इट शुड बी नीट क्लीन एंड AC शुड बी इंस्टॉल्ड इन दैट. So that is required for the colon therapy. So you got a basic idea. And Shatkarma area, है ना. So Shatkarma you need a simple, आजकल लंबे वॉश बेसिन आ गए, आजकल पोर्टेबल भी आ गए हैं, where you can do जलनेति, सुतनेति, eye wash, कुंजल, है ना. These therapies you can teach. And one small yoga studio. आप हमेशा सोचें जब OPD में जा रहे हैं, you go for the studio. Studio is like a good feel. अच्छा सा छोटा सा योगा हॉल वेयर यू आर टेकिंग पर्सनलाइज सेशन और अ ग्रुप सेशन ऑफ मे बी 20 people, 25 people, or a class lecture you are delivering on naturopathy and all, where you have all your recording setup, where you're going live from your Facebook, Instagram, or recording properly. It should have good light and it should have open air space. जहाँ पे आप त्राटक करा रहे हैं, आप योग निद्रा करा रहे हैं, DRT, QRT करवा रहे हैं, आप स्पेशलाइज MSRT करा रहे हैं,
है ना, ये सारी चीजें आप, अच्छा योगा स्टूडियो चाहिए, आप यज्ञ थेरेपी, हवन चिकित्सा करा रहे हैं, तो ये आपको एक सेटअप चाहिए। चौथा आपको क्या है, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैं रिवाइज कर देता हूँ। डॉक्टर रूम हो गया, कंसल्टेशन, थेरेपिस्ट हो गए दो, है ना। उसके बाद आपने थेरेपी रूम का मैंने डिस्कस किया, टेबल्स का डिस्कस किया, उसमें डिफरेंट मॉडल्स, हॉलिस्टिक थेरेपी रूम जो आपको याद रखना है, हॉलिस्टिक थेरेपी रूम आपको मॉडल में याद रखना है। सिंगल हाइड्रोथेरेपी, आप ये सोचेंगे मेल फीमेल के लिए, देखिए इनिशियल स्टेज पे मेल फीमेल के लिए सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको, आप थोड़ा थोड़ा या तो छोटे छोटे रूम बना दें, या सेपरेशन आप पर्दे से या पोटा कैबिन से कर सकते हैं, वाटरप्रूफ आजकल सब आने लग गया है। तो और टाइल्स आपको रखनी, जहाँ भी हाइड्रोथेरेपी या मसाज थेरेपी है, अप टू 6 और 7 फीट यू नीड टू कीप द टाइल्स प्रॉपर, आप टाइलिंग रखें, ताकि जो है वाटर सीपेज प्रॉब्लम ना हो। और क्योंकि आप हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, आइस वाटर, एवरीथिंग यू आर यूजिंग देयर, सो स्लिपरी ना हो, फुल एंटी स्किड फ्लोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। And even the washroom, toilets, everywhere you need to take care of skid, and you need to keep the rods, जहाँ पे पेशेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चल नहीं पा रहा, साइटिका पेशेंट है, ऑलवेज दे नीड सपोर्ट नियर द वॉशरूम। कोलोन कराया आपने, वॉशरूम में बैठा तो उसको चेन चाहिए या हाथ पकड़ने के लिए चाहिए, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, इवन प्लानिंग फॉर द मिनिमल ओपीडी सेटअप। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कमिंग फॉर द डाइट पार्ट, तो आपने अब छोटा सा मॉडल देख लिया, एक होलिस्टिक थेरेपी रूम हो गया, हाइड्रोथेरेपी एरिया हो गया, आपने उस हॉलिस्टिक रूम में स्टीम बॉक्स भी रख लिया, स्टीम बाथ भी है। एक्चुअली स्टीम बड़े वाले जो चेम्बर्स हैं उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, नाउ पीपल आर नॉट कंफर्टेबल सिटिंग विद अदर पीपल, आप एक जने को इतना स्टीम बाथ का खर्चा ज्यादा होता है, स्टीम बॉक्स का खर्चा कम है, स्टीम बनी, आपने 10-15 मिनट्स दिया, अच्छे से स्वेटिंग हो गई, और आपने उसको बाहर धीरे से निकाला, पानी पिला के धीरे से उसको पोंछा। ये अगर नेचुरोपैथी स्वीडिश मसाज दिए तो आप उसको हॉट और कोल्ड शावर दे सकते हैं अकॉर्डिंगली, और अगर अभ्यंग दिया है तो उसको थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद आप बोलेंगे अभी बॉडी वार्म है, लेट इट कूल डाउन, देन यू टेक द शावर विद वार्म वाटर आफ्टर 1 आवर प्रोबेबली। सो दैट इज द प्रोसेस। लास्ट में आ रहा हूं अब आपके फिजियोथेरेपी का, मैंने आपको बता दिया, कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूपंक्चर, लीच थेरेपी, वो हॉलिस्टिक रूम में लीच थेरेपी हो जाएगा, आपका फायर कपिंग हो जाएगा, वेट कपिंग हो जाएगा, है ना, और श्रृंगी चिकित्सा हो जाएगा, है ना, गुआशा हो जाएगा, वात मोक्षण, जिसमें यू यू गो फॉर द स्क्रबिंग, स्क्रेपिंग जिसको बोलते हैं, मसल स्क्रेपिंग, लेजर थेरेपी हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत सारी थेरेपीज हम यहाँ पे दे पा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, वन रूम। अब नेक्स्ट वी आर कमिंग फॉर द डाइट कैंटीन, यस डाइट कैंटीन इज अ मस्ट, एंड डाइट कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी नेचुरोपैथ। तो डाइट कैंटीन में क्या क्या चाहिए आपको, एक आप घर पे ही आती हैं शेफ आपके, या एक लेडी या एक मेल, इसको आप ट्रेन करिए नेचुरोपैथी डाइट में, पहले खुद आप सीखे, उनको आप स्पेशलाइज करें, डिफरेंट जूसेस जो हम बना रहे हैं, एबीसी ट्रिपल टीजे जूस क्या होता है, आंवला, बीटरूट, कैरेट, टमेटो, टर्निप, टर्मरिक, जिंजर जूस, इस तरह से हमारे पास हीम जूस है, प्लेटोग्रिड जूस है, लिवोग्रिड जूस है। तो आप ये तो सब पतंजलि की वेलनेस की वेबसाइट पे सब फ्री डाल रखे हैं हमने, पूज्य स्वामी जी के आदेश के द्वारा, तो आप हर चीज देख सकते हैं कि हर डिसीज के लिए हमारे पास जूस है और डाइट की थेरेपी है। अब लिवर पेशेंट है, उसको वी गिव गिव गोट मिल्क कल्प, जिसको आयुर्वेद में बताया है, अजा दुग्ध कल्प बताया गया है, दैट इज गुड फॉर रिवर्सल ऑफ एवरी लिवर डिसीज। तो आपको ये सारी स्पेशलाइज चीज पहले खुद बनाना आना चाहिए, और आपको सीख करके पेशेंट को भी बताना चाहिए, और उसके लिए उसको आप किचन का जो शेफ है उसको आप ट्रेन कर सकते हैं पहले, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं बना करके। और ये आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड देंगे उसको, दिन में अगर डे केयर में आपके पास आया है पेशेंट, तो आपने टाइम टाइम पे उसको फ्रूट डाइट, रॉ डाइट, और आपने उसको सैलेड्स, आपने उसको जूसेस, या फास्टिंग करवा रहे हैं आप आपके सुपरविजन में, तो आपने उसको डिफरेंट जूसेस दिए, तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया आपका योगा स्टूडियो, है ना, जिसमें आपने योगा, यज्ञ, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, योग निद्रा, स्पेशलाइज्ड अपनी टेक्निक्स हो गई योगा की, इसमें षटकर्मा जो मैंने बताया, षटकर्मा एरिया ये आपने दिया, है ना, डाइट कैंटीन हो गई, लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सन बाथ एरिया। तो आप डिफाइन करें जहाँ पे आप मड बाथ दे सकते हैं पेशेंट को, सैंड बाथ दे सकते हैं, है ना, उसके अलावा आप उसको ग्रीन हाउस थर्मोलियम दे सकते हैं, जिसमें सिर्फ पन्नी में आपने लेटाया, पानी पिला के प्री पोस्ट में, अच्छा स्वेटिंग होता है, 1 घंटे में, मतलब 20 मिनट आपने दिया तो आधे से 1 लीटर उसका पसीना निकलता है, और वेट भी अच्छा कम होता है, फैट ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है, एडिपोज टिश्यू। तो ग्रीन हाउस थर्मोलियम, कलर थर्मोलियम इज वेरी गुड। तो मड बाथ, गंजी टर्मरिक बाथ, ऑल टाइप्स ऑफ लेप यू कैन गिव देयर। तो थोड़ा आउटर में छत पे आप बना ले, या बालकनी में मेल फीमेल का सेपरेट कर दे, तो ये आप रख सकते हैं। सो दैट इज अ मिनिमल सेटअप विच इज रिक्वायर्ड, है ना। अब आप कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए, आपको क्लियर हो गया कि ओपीडी हो गया,
होलिस्टिक रूम हो गया, है ना, आपका हाइड्रोथेरेपी रूम हो गया, कोलोन थेरेपी रूम हो गया, डाइट का एक पार्ट हो गया, छोटा कैंटीन हो गया आपका, आपने योगा स्टूडियो रख लिया, आपने षटकर्मा एरिया रख लिया, आपने हाँ, मडबात एरिया रख लिया। सो दैट इज ऑल यू नीड टू स्टार्ट विद हॉस्पिटल और ओपीडी, है ना। उसके बाद आपका फ्लो एंड सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन कंसल्टेशन, ऑनलाइन मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए क्या करें, आप अपना एक स्पेशलाइज नंबर बना लें, एंड यू कैन यूज, आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं बेसिकली टू कनेक्ट विद योर पेशेंट। आपके पास एक पेशेंट आया, उसको आपने एक दिन का प्लान दिया, 7 दिन के लिए ओपीडी के लिए दिया या 3 दिन के लिए दिया, आपने उसको फॉलो अप डेट दी, भाई आपको 10 दिन बाद आना है, 15 दिन बाद आना है, 1 महीने बाद आना है, फिर 6 महीने बाद, तो आप उससे ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड दैट टू कीप अ मिनिमम कॉस्ट। कंसल्टेशन कॉस्ट कितना रखें इनिशियली, यू कैन कीप 200 to 500, अगर आप बीएनवाई से तो 200, 300 इज फाइन, अप टू 500। और बहुत ज्यादा एक्सेसिव आपकी डिमांड नहीं होनी चाहिए कि मैं 1,000 लूंगा, ऐसे नहीं। स्टार्ट विद अ मिनिमल। जब आपका एक रेपो बन गया, आपका एक क्लाइंटल बन गया, आपके परमानेंट पेशेंट्स बन गए, देन यू कैन स्लोली इंक्रीज। दैट्स हाउ वी आर एक्सपेंडिंग पतंजलि वेलनेस। हमने छोटे से, अभी हमारे बहुत सारे ओपीडी सेंटर्स हैं विच आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आईपीडी, कि ओपीडी उनका बहुत अच्छा रन हो गया, तो उन्होंने पास में अपनी एक जगह है वहां पे रेजिडेंशियल भी बना दिया, and they have made a good IPD center, and we are even adding up with multiple allopathy hospital। हमारा जो पतंजलि वेलनेस हरिद्वार में है phase 2 में, in phase 1 we have started an emergency एलोपैथी यूनिट, जहाँ पे हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, ऑल स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, एमबीबीएस, एमडी, डीएम आर देयर ऑलमोस्ट। So there we are integrating with Ayurveda, allopathy, and yoga and naturopathy, three systems of medicine which are actually the base and make a strong system of medicine. Okay, so that's the vision I have given to you. So इसमें अब देखिए टाइम थोड़ा सा कम है, 1 घंटा होने आ गया है। अब आपके कुछ स्पेशलाइज क्वेश्चन है, आप सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं बोलता रहूं आपके, क्योंकि बहुत सारे डाउट और क्वेश्चन हो सकते हैं, तो क्विकली आप शॉर्ट में पूछें, मैं क्विकली आपको 1 लाइन 2 लाइन में आंसर करूंगा। बहुत सारे सारे नेचुरोपैथी डॉक्टर, मुझे पता है आपके बहुत सारे डाउट रहते हैं, मैंने आपको सिर्फ एक विजन दिया है, आई ट्राई टू डेवलप अ विजन, कि आप कम में, कम जगह में, कम पैसे में, अगर आप ट्रेंड हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं और करना चाहिए आपको, and you can take franchisee from a good institute like Patanjali Wellness or whatever. So that is up to you. And third, you can develop over the period of time. It's a long time. आपको आपके एरिया में करना है या बड़ी जगह करना है, डिपेंड्स ऑन यू। आप ओपीडी से स्टार्ट करके एक आईपीडी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर ओपीडी सक्सेसफुल हुई तो। सिटी के आउटर में कोई खेत की जमीन है या कोई रिसोर्ट है जो डेड पड़ा है, आप उसको रिजुवनेट करके आप उसको अच्छा बना सकते हैं, होलिस्टिक हीलिंग सेंटर। So that and all are the different things what we are doing, not just in India, even in the many other countries we are reaching through this model, and many countries are accepting this model along with their allopathy setup also. So just I would like to give take some questions now। बताने को मेरे पास बहुत कुछ है, I can extend it up to multiple times, so just I wanted to explain you the basic model। Yes please। Dr. Kanak, आप अपना, हाँ, yes sir, बताएं सर। Dr. Kanak, we have a question from Alisha Siddiqui ji. She is a second year student and she is asking, what approach should I adopt to learn and maintain disease with treatments? What approach should I adopt to learn Okay, and maintain diseases with treatments? okay. So see, in naturopathy, we are always giving the holistic treatment। एलोपैथी, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में मेजर आप किसी भी हेल्थ केयर से कंपेयर करें तो हमारा उद्देश्य क्या है, वी आर नॉट जस्ट ट्रीटिंग अ सिंपल सिम्टम और डिसीज, वी आर actually healing at all the panchkosha level। Psychosomatically we are dealing the patient, we are motivating and inspiring the patient, yes you can become fit, you can become healthy, every day you can heal yourself। That is the way you are communicating। We are going deep into their past history, their lifestyle, their food habits, which we are working on। अब हमारा ऑपरेशन क्या होता है, सर्जरी क्या होती है, वी आर डूइंग द ऑपरेशन एट देयर मेंटल लेवल, है ना, then the physical level, emotional level, psychological level, by giving all the yogic therapies and yajna therapy, etc., acupuncture, etc. Then we are actually guiding them with a proper diet and lifestyle, a routine which they can actually follow up, which they can actually implement and give us the result and ask us if any correction is needed। So long term अगर सस्टेनेबल आप जो का जो प्रश्न है कि मेरे पास कोई डायबिटीज पेशेंट आता है या ओबेसिटी आता है, सो आई एनालिसिस डीप
डायग्नोसिस करते हैं मॉडर्न प्लस आपका नेचुरोपैथी डायग्नोसिस, आइरिस डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट, पल्स डायग्नोसिस, आजकल नाड़ी तरंगिनी जैसे काफी इंस्ट्रूमेंट आ गए, लर्न पल्स डायग्नोसिस, आपका जितने नेचुरोपैथी डायग्नोसिस, फिजिकल डायग्नोसिस इज ऑल इम्पोर्टेंट। उसके बाद आप पूरा हिस्ट्री आप सॉफ्टवेयर में लीजिए, अपने ऑनलाइन रिकॉर्ड रखिए। उसके बाद आप उसका प्लान करें, थेरेपी प्रोटोकॉल, डाइट प्रोटोकॉल। आपके पास जब वो ट्रीटमेंट ले रहा है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 21 दिन, 30 दिन, जो भी पेशेंट ले रहा है, उसके बाद उसका घर का प्लान जरूर दीजिए कि आपको घर पे सुबह आपका 6 बजे या उसके अकॉर्डिंग 6 बजे से रात को 10 बजे तक का ये डाइट, ये प्रोटोकॉल, ये योगा, ये प्राणायाम आपको करना है। एंड कीप चेकिंग योर वाइटल्स, टेस्ट, ब्लड टेस्ट जो भी करना है। और एंड यू हैव टू फॉलो देम अप फॉर द लॉन्गर टाइम, सो यू कैन एक्चुअली, अगर डायबिटिक पेशेंट ही है तो आप उसको क्योर कर सकते हैं। ओबेसिटी पेशेंट ही है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, आप उसको 6 महीने, साल भर, लॉन्ग टर्म गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट जस्ट द, वी आर नॉट, नेचुरोपैथी सिस्टम इज नॉट आज किया कल ठीक हो, ऐसा नहीं है। वी आर नॉट गिविंग एनी पिल, वी आर जस्ट चेंजिंग द लाइफस्टाइल। इट टेक्स टाइम, it takes continuous efforts from your side and from the patient side and motivation of the patient। तो आपको इंस्पिरेशन देना है उसको, तो वो मोटिवेटेड रहेगा तो वो चीज करेगा। इफ दे आर हैविंग क्रॉनिक डिसीज, डेफिनेटली पीपल वांट टू हील। आजकल लोगों का माइंडसेट ये हो गया, पहले लोग क्या गोली खाओ काम चलाओ वाले हिसाब से थे, बट कोविड से आज तक वर्ल्ड इज एक्सपैंडिंग सो मच, एआई टेक्नोलॉजी इज सो मच एक्सपैंडिंग। हर व्यक्ति चाहता है मैं 100 साल तक बिल्कुल फिट रहूं, दौड़ सकूं, स्विमिंग कर सकूं, ट्रैवल कर सकूं, एंजॉय कर सकूं लाइफ को, डांस कर सकूं शादियों में, पार्टियों में, अच्छा दिखूं, है ना, माय हेयर शुड बी ब्लैक। ये हर पेशेंट चाह रहा है, मतलब मैं जितने पेशेंट देख रहा हूँ दिन भर में, जिसके पास भी थोड़ा पैसा भी आ गया है, बोल रहा है सर कंफर्टेबल लाइफ चाहिए मुझे, पैसिव इनकम चाहिए, 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए महीना, और मैं अपना लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, ये उनका उद्देश्य हो गया। और प्रॉपरली फॉलोइंग द सात्विक धर्म, अपना सनातन संस्कृति को, टीका लगाना, ये कर्ण वेदन, कानों को छेदना, ये सारी फॉलो कर रहे हैं लोग, रिचुअल्स, यज्ञ करना, हवन करना। सो दिस इज एक्चुअली द लाइफस्टाइल एवरीवन, नॉट इन इंडिया, मेरे पास अब्रॉड के पेशेंट है who are actually following a Sanatan lifestyle. So naturopathy in yoga is always linked with our Sanatic Vedic lifestyle. Okay, next question, please. Sir, how many days we should give Epsom salt bath to the coccyx blockage patient, as mentioned in the Okay. Alisha? See, coccydynia is a very tailbone, not fracture. Coccydynia is a very common injury। कैसे होती है, कोई जैसे बैठ रहा है, मान लो आपने उसकी कुर्सी खींच ली, या कोई गलती से हार्ड सरफेस पे एकदम झटके से ऊपर से बैठ गया, तो क्या होगा, कॉकेक्स अपना थोड़ा ऐसा होता है, ये थोड़ा सा पीछे मुड़ जाता है। और क्या होता है, नीचे अपना कॉर्डा इक्विना होता है, हॉर्स टेल, जहाँ पे नर्व्स का गुच्छा जाता है, अपना सब यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करता है, तो उधर थोड़ा सा इंजरी हो जाता है ना, तो इट टेक्स टाइम टू हील। तो एक तो ट्यूब पे बैठना है, या आजकल कॉकिक्स पिलो आने लग गए, वो जरूरी है। गिव रेस्ट, आइस राइस जरूरी है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, सोते समय उसमें थोड़ा सपोर्ट देना, है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस और एप्सम सॉल्ट कंप्रेस, वेक्स थेरेपी, एक्यूपंक्चर, दीज आर इफेक्टिव, ओजोन थेरेपी। आपका जो प्रश्न है एप्सम सॉल्ट बाथ, जैसे अब पेशेंट्स को हम घर पे कैसे बताते हैं, मैं बोलता हूँ आप 500 रुपए का बड़ा टब ले लीजिए। आज ने देखा होगा मेले वेले में ऐसे टब तोड़ तोड़ के दिखाते हैं, अनब्रेकेबल टब। तो बड़ा वाला टब जो कपड़े धोने का होता है वो ले लीजिए आप, 500, 1000 रुपए में, 1200 रुपए में आ जाएगा। उसमें आपने नहाने के टाइम आपने टेम्परेचर सेट मीटर ले लिया, वाटर टेम्परेचर का मीटर आता है, उसमें आपने हॉट वाटर जितना आप बैठ सके, उसमें आपने 1 मुट्ठी मैग्नीशियम सल्फेट डाला, और थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें आप बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। आपने उस पेशेंट को उसमें बैठा दिया, है ना, और आपने कहा डीप ब्रीदिंग और लाइट प्राणायाम करने के लिए उसको, और बैक पे चाहे तो आजकल वाटर पिलोज आते हैं, पानी के पिलोज, उससे सपोर्ट दे दिया, पैर के नीचे पाटा रख दिया। तो ये एक हॉट आप कॉम्प्रेस या हॉट वाटर एप्सम सॉल्ट बाथ दे रहे हैं, हिप बाथ, टू अ पेशेंट विद कॉक्सीडीनिया और कॉकिक्स अपना इंजुरी और पेन। इसमें फ्रैक्चर नहीं होता, इट टेक्स टाइम। फ्रैक्चर होता है तो सर्जरी कर देते हैं डॉक्टर, सो इट टेक्स टाइम टू रिकवर। मुझे खुद भी हुआ था ये, मेरा सिर्फ नेचुरोपैथी से ठीक हुआ, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। एक बार मैं ऊपर से जोर से बैठ गया था तो गिर गया था, तो मुझे बहुत सीवियर 3-6 महीने रहा, फिर बीच बीच में दर्द उठ जाता था थोड़ा चलने में, योग करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी। पर योग किया और ये सारी थेरेपी जो मैं बता रहा हूँ ये लिया, अपने कंप्रेस लिया, ऑयल कंप्रेस, और ठीक हो गया विद इन लाइक, मैंने ठीक किया, लगभग 3 महीने लगे बिल्कुल जीरो होने में, अब तो पता ही नहीं मुझे हुआ था। तो इट कैन ऑलवेज हील। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Next question is actually at present some problems are going on in the Tamil Nadu state, so it is related to that.
So I'll take up हाँ. that question later on. I'll take up more of Yes. therapeutic questions. Um, Please. we have a question. Hello, sir. Dr. Archana is asking if we want to conduct camp in collaboration with Patanjali Haridwar at our own place, how can we proceed? Please guide. यस. तो सी, दो चीजें हैं इसमें. एक तो पतंजलि वेलनेस है, वेयर वी आर गिविंग फ्रेंचाइजी फॉर द ओपीडी एंड आईपीडी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स. दैट इज फर्स्ट थिंग. तो वो तो आप ऑनलाइन वेबसाइट से patanjaliwellness.com आप गूगल पे डालेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी. उसमें फ्रेंचाइजी पे जाएंगे, आपको सारा उसमें पता लग जाएगा कितना एरिया चाहिए, क्या चाहिए, सारी डिटेल्स आर गिवन. फिर ओपीडी मॉडल फॉर आईपीडी मॉडल. दैट इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड, आपको कैंप कराना योगा का, नेचुरोपैथी का. ये तो वी हैव भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एंड महिला पतंजलि समिति, योग समिति. तो पूरे भारत में हर गांव में, हर शहर में हमारे योग प्रशिक्षक हैं जो बिल्कुल निशुल्क योग कैंप लेते हैं हर गार्डन में. मतलब इंडिया में मे बी अराउंड 1 लाख गार्डन्स और प्लेसेस आर देयर इन स्कूल्स. दे आर कंडक्टिंग योगा, यज्ञ, एक्यूप्रेशर डेली without any single penny. They're not on salary. So whatever comes is from the donation they work. Okay. So उससे आप ऐड कर सकते हैं. You can always see भारत स्वाभिमान and we have a whole team. It's a full managed system. जब राजीव दीक्षित जी से, तब से ये गांव गांव में हुआ और आजकल पूरे परम पूज्य स्वामी जी के गाइडेंस में पूरे भारत में ये मिशन की तरह चल रहा है कि हर घर को सनातन से जोड़ें, यज्ञ से जोड़ें, योग से जोड़ें, हेल्दी डाइट से जोड़ें. है ना. तो ये एक मिशन है कि हम एकदम इंडिपेंडेंट हेल्दी भारत की परिकल्पना के लिए हम ये कर रहे हैं कि हर व्यक्ति हिंदुस्तान में, बच्चे से लेके बूढ़े तक, गलत आदतें ना हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो और सनातन संस्कृति को फॉलो करें और हेल्दी रहे. तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट. यू कैन ऑलवेज वेलकम टू कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप. आई विल शेयर यू द डिटेल्स. थैंक यू. नेक्स्ट प्लीज. So Dr. Archana, you can connect with him. I have already shared sir's number on the chat. You can get the number from there. Okay. Another question coming up. By Dr. Sachidanand. He has asked, in the national view, naturopathy means yogic chikitsa plus Ayurved recipes. Part 1, no use of any rust medicine. Some homeopathic medicines, not use all homeopathic medicine. Some modern physiotherapy, any natural method. Add various countries, various system uses eliminate of nature. Okay, he was just suggesting that international view of naturopathy is so and so. Anyway, we have to work a lot on that. दैट वे. यस. Another question from Avishi Rakesh ji. Hello, sir. I am first year BNY student. Want to know that along with course, what skills we should develop and seek out to learn. Yes, that is very important question. Good question. So always I keep motivating my all the young generation of BNY. जहाँ भी मैं एग्जाम लेने जाता हूँ या लेक्चर लेने जाता हूँ. सो मेरा ये उद्देश्य ये है फर्स्ट ईयर से, बिकॉज आप इस सिस्टम में आ गए तो पहली चीज ये भूल जाए कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, आ गई हूँ. दिस इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन. आप ये नोट करके रख ले. 100% डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने स्किल्ड हैं एज अ फिजिशियन, एज अ योगा टीचर, एज अ हर चीज के लिए. तो आपको स्किल क्या यूज करनी है. देखिए, योग आपको रेगुलर करना है. जो आपका 85% है वो आपके लिए है, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है. सो ऑलवेज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योग फ्रॉम डे वन. बिकम अर्ली मास्टर ऑफ एडवांस्ड योगा एंड एडवांस टेक्निक्स ऑफ योगा लाइक त्राटका, कुंभका, अंतरकुंभक, बाय कुंभक, अग्निसार क्रिया, नौली, शंख प्रक्षालन. ये आपको अच्छे से आना चाहिए, खुद को भी करना आना चाहिए और करवाना भी आना चाहिए. ऑल द षटकर्मास एटसेट्रा, ऑल द स्पेशलाइज्ड योगिक टेक्निक्स. है ना. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग. रेकी, प्राणिक हीलिंग आपको आनी ही चाहिए बिकॉज एज अ योगा फिजिशियन रेकी एंड प्राणिक हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल इसके डिवाइसेस भी आ गए, जैसे आते हैं हीली करके डिवाइस आता है. ऐसे कई सारे डिवाइसेस आ गए हैं which are actually help in the vibrational therapy or energy healing we say. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्यूपंक्चर आपको सीखना मस्ट एंड कंपलसरी. एक्यूपंक्चर से रिलेटेड हर चीज, ऑरिकुलर थेरेपी, ईयर एक्यूपंक्चर, रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूप्रेशर, ये दीज आर बेस्ड ऑन द एनर्जी हीलिंग एंड योग निद्रा त्राटका. तो ये तो आपको आना चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी हम नहीं सीखते हैं क्लिनिकली इन BNYS, दैट इज यू नीड टू लर्न ओजोन थेरेपी. यू नीड टू लर्न द ऑल टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटिव थेरेपी जो आपकी बुक में है ना. मैनिपुलेटिव थेरेपी, स्वीडिश मसाज से लेके आपको कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, ये सब जो स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स है, क्योंकि एक एक टेक्निक का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है. रिफ्लेक्सोलॉजी, मैग्नेट थेरेपी बहुत सिंपल है, पर अगर आप सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ट्राई करेंगे और एडवांस जगह सीखेंगे, 3-4 दिन सर्टिफिकेशन से लेके 10 दिन कहीं रह के छुट्टियों में आपने सीख लिया, तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट रहेगा. सो आई
आस्क एवरी ईच एंड एवरी BNY स्टूडेंट, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बी मास्टर ऑफ ऑल द थेरेपीज विच आर देयर इन योर सिलेबस और नॉट देयर इन योर सिलेबस, उसमें भी आपको सीख करके अपनी मास्टरी करनी चाहिए। जितने आप स्किलफुल रहेंगे उतनी आपकी डिमांड है, उतना मंथली आप कमा सकेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे मेरे नोन में एक दो डॉक्टर्स हैं मेरे अंडर ट्रेन किए हुए हैं, तो जो सिर्फ अपनी स्किल, कुछ कायरोप्रैक्टिक कुछ रिफ्लेक्सोलॉजी, आपका जो है 1.5 लाख से लेके 6 लाख रुपए महीना आराम से घर पे बैठ के कमा सकते हैं, गिविंग ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड ऑफलाइन थेरेपीज इफ यू आर स्किल्ड इनफ। अगर आप अकेले भी हैं, आपको थेरेपीज आती है, तो आप 6 लाख रुपए महीना आप बहुत इजी गोइंग कमा सकते हैं, और वो आज की तारीख में बहुत अच्छा अमाउंट है बिकॉज ऑफ योर फिजिकल टेंडेंसी। इवन हमारे डॉक्टर विवेक सर आप देखिए, सर हैज स्किल्ड मास्टर्ड द जुम्बा एंड द फिजिकल थेरेपीज। आजकल लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, योगा के साथ कुछ लग्जूरियस एंड कुछ डिफरेंट, सो म्यूजिक के साथ आर्ट को सर ने कनेक्ट किया, योगा को कनेक्ट किया, एंड सर हैज नाउ रायपुर एंड छत्तीसगढ़ ऑल ओवर इंडिया ही इज गोइंग एज अ गेस्ट फैकल्टी। सो सर हैज मास्टर्ड एंड ओबेसिटी में बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। क्या मैंने डिफरेंट डिसीज के रिजल्ट देखे सर के डेटाबेस में जो है, डॉक्टर विवेक भारतीय सर, एंड आई हैव सीन सो मेनी डिसीजेस ही हैज जस्ट ट्रीटेड विद द जुम्बा इटसेल्फ, जुम्बा एंड योगा। So just specializing in one technique also you can become a master of that field. But if you learn all the therapies and your choice, you can extend, always learn that. Thank you. Next, please. Thanks, Dr. Kanak. We have a question that regarding Patanjali franchisee, you can go to patanjaliwellness.com and there you can get the details about the franchisee. We have a question from a first year student Madhvi Singh ji, and she says that I am first year student. My medical subjects teachers who are MBBS, MD, and they usually say that BNY student don't need to learn medical subjects as a MBBS one need to learn. So basically, they skip many topics of medical subjects by saying that it is needed for surgery things. So तुम लोग रहने दो एग्जाम के लिए, तो सो तुम लोग रट लो एग्जाम के लिए। देखिए ये तो हमेशा रहा है, दिस इज बिटवीन, हर पैथी वाले अपने आप को सुपीरियर कहना चाहते हैं, बोलते हैं आपको हम सिखा के क्या करेंगे, दैट इज देयर। हमारे भी देखो, इवन आर BNYS, अपने सर, आपके भी BNYS में हमें MBBS MS, जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे उन्होंने एनाटॉमी पढ़ाया। MBBS MD पैथोलॉजी सर ने हमें, विवेक सर थे उस टाइम, उन्होंने हमें पैथोलॉजी एंड माइक्रो, ऑल MBBS डॉक्टर इन माई फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर हु टॉट मी द बेसिक मेडिकल साइंसेस। तो ऐसा कुछ नहीं है, दे वर मोटिवेटिंग अस कि हमारे से ज्यादा आपका स्कोप है। देखो जो भी है आजकल, व्हेन यू आर इन अ कॉलेज, ये चीज ध्यान रख लें, जब आप BNYS कर रहे हैं, अब आप स्कूल के बच्चे नहीं रहे कि टीचर आपको हर चीज स्पून फीड करेगा, दैट इज वन थिंग। एंड सेकेंड इज, नाउ वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग इन चैट जीपीटी, ऑनलाइन मोड है, आप देखें यूट्यूब पे देखें, एवरीथिंग आपके पास, नोट्स भी हैं, आपके पास वीडियोज हैं, 3D animated videos, AI generated videos, so you can learn actually each subject very deeply. You don't have dependency only on teacher कि टीचर पढ़ाएगा या वो हमें बोलेगा तभी पढ़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। BNYS को सबसे ज्यादा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, मॉडर्न डायग्नोसिस पता होना चाहिए। जब आपको अच्छे से पता होगा तभी आप जो MBBS MD DM डॉक्टर्स हैं या और भी सीनियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स हैं, उनसे आप पेशेंट के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, डायग्नोसिस अच्छा होगा आपका, उसका आप प्रोग्नोसिस अच्छा दे पाएंगे, पेशेंट को बता पाएंगे लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, वो सेम रिजल्ट आप उसकी रेडियोलॉजिकल प्रोफाइल में और उसके ब्लड प्रोफाइल में, उसके साइकोसोमेटिकली आप देख पाएंगे। तो बिल्कुल कोई BNYS को ऐसा नहीं है, सब आपको अच्छे से पढ़ना है सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट इन योर सिलेबस is very important equally. Become master of every subject. Learn online, use AI and use YouTube, Google, everything and learn. Nowadays many applications are there where you can learn by yourself. Okay, so उसमें आप जाएं आगे जी। Sir, do we have any Patanjali wellness centers in Bangalore? We have a question from Dr. Ashmi Bilki ji. Not yet, not yet. We are going to have 2 or 3 centers probably within next 1 or 2 years, but right now we do not have. South में already बहुत naturopathy centers हैं which are running good, so maybe after some time it may come. Yes. Sir, we have question from Megha Lata ji. Any advice for fourth year BNY students? देखिए फोर्थ ईयर इज कम्प्लीटली थेरेप्यूटिक, हर जगह इंडिया में। फोर्थ ईयर में आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हाइड्रोथेरेपी और आपकी सारी थेरेपीज, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, फास्टिंग थेरेपी, वो ठीक है,
पर उसको प्रैक्टिकली करना जरूरी है। फास्टिंग जब तक आप खुद नहीं करेंगे 10 दिन 15 दिन, आपको नहीं समझ में आएगा कि कितना इफेक्टिव है। आप न्यूट्रिशन डाइटिक्स खुद बनाना नहीं सीखेंगे तो आपको नहीं आएगा। तो फोर्थ ईयर, आई थिंक थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज कम्प्लीटली प्रैक्टिकल। तो आपको ज्यादा से ज्यादा, जब आपको प्रैक्टिकल टाइम मिल रहा है, पेशेंट को खोज करके पेशेंट को आप खुद थेरेपी देने का ट्राई करें, खुद ले और सीखें। तो ये सबसे जरूरी है कि ऑलवेज आवर सिस्टम इज प्रैक्टिस एंड प्रीच। मैं अगर खुद नेचुरोपैथी फॉलो नहीं कर रहा, मैं खुद योगा प्राणायाम नहीं कर रहा, मैं डाइट फॉलो नहीं कर रहा, मैं खुद ही अगर गलत हैबिट्स का पालन कर रहा हूँ, एंड आई ऑलवेज यू थिंक यू आर अ रोल मॉडल, यू आर एन एग्जाम्पल फॉर योर पेशेंट्स एंड योर कमिंग स्टूडेंट्स, आप उस वे में ऑटोमेटिकली एक्ट करेंगे और आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छा सीखेंगे, और उसी को आप फिर पेशेंट्स को, देखिए पेशेंट नीड पर्सनल केयर। एवरी पेशेंट, मैं भी अगर जाऊं कहीं वेलनेस सेंटर में, आई ऑल्सो ट्राई टू गो एवरी ईयर कि भाई 5 दिन 7 दिन में नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लूं। तो मेरा उद्देश्य क्या रहता है कि जो डॉक्टर है, ही और शी शुड बी माई गाइड, और आप उससे एक पर्सनल कनेक्शन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं थ्रू आउट योर लाइफ, अगर वो नॉलेजेबल है तो उसके लिए क्या करना है, उसमें नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए। तो मतलब उससे आप थेरेपी में अच्छे हैं। और कभी कभी पर्सनल देना पड़ता है, कई बार मैंने खुद अपने पेशेंट्स को मैं अपना कायरोप्रैक्टिक देता हूँ पर्सनली, एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी देता हूँ या सिखाता हूँ कि आप इसको ऐसे करें, है ना। तो दिस इज माई स्किल। फिजिकल एग्जामिनेशन करता हूँ। सो एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, आई गिव अ पर्सनल टच टू माई पेशेंट, एंड उससे वो दे बिकम मोर कनेक्टेड एट द एनर्जी लेवल, साइकोसोमैटिक लेवल्स। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप प्रैक्टिकली जो भी सीख रहे हैं उसको आप अच्छे से सीखिए, और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट, मतलब इवन आप देखिए, आप ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं भी आपको कोई भी दुखी पेशेंट मिले या किसी को ओबेसिटी है, जस्ट गिव अ फ्री एडवाइस, स्माइल दीजिए, बोलिए सर आप इसमें थोड़ा सा योगा नेचुरोपैथी करेंगे, इतना सा फॉलो करेंगे आप, इसमें हेल्प होगा। किसी को हेडेक हो रहा है, आपको कोई मिला तो थोड़ा सा उसको एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी दे दीजिए। तो ये तो चलते फिरते यू आर अ ऑल टाइम डॉक्टर टिल योर 100 ईयर्स। तो जहां आपको दिखे कि इस बंदे को थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, गिव अ फ्री। उसमें देखिए, हम ये सोचते हैं हर चीज का पैसा मिले, हर सेशन का ये हमें मिले। देखिए, अब जब आपकी स्किल उस लेवल की हो जाती है ना, ऑटोमेटिकली मनी विल कम। मनी डज नॉट मैटर अप टू अ सर्टेन लेवल। आप मनी में चलो 50,000 से 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख तक कमा भी लोगे महीने का, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एज अ ह्यूमन योर सेटिस्फैक्शन। जब आप पेशेंट को हल्का सा भी, किसी को थोड़ा सा भी आराम दे देते हो दर्द में या किसी भी चीज में, ऑटोमेटिकली दे कनेक्ट विद यू ऑलवेज। एंड मनी से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है आपकी रिस्पेक्ट और आपका जो एक कनेक्शन है, यू गेट कनेक्टेड टू मल्टीपल पीपल फॉर योर लाइफ। फिर आपको ये सब चीजें दिक्कत नहीं होती। बहुत सारी चीजें तो पता ही नहीं पड़ता कितनी चीजें गिफ्ट में भेज देते हैं पेशेंट आपके बर्थडेज पे, न्यू ईयर पे, मिठाइयाँ मिठाइयाँ ऐसे। ये सब तो क्या है, मीन्स इट ऑल ऑन योर एटीट्यूड। सो नेवर बिकम ग्रीडी फॉर मनी, money will come. Always become greedy to help more people, learn always more and more, develop and generate new skills, learn AI, and create something new and create researches। एक इंडिविजुअल पेशेंट पे रिसर्च किया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, हम लोग सोचते हैं कि बड़ी रिसर्च मतलब कोई बड़ी चीज है। रिसर्च मतलब बिल्कुल सिंपल है। क्या सर्च करना है हमें, रिसर्च क्या करना है, ये मेरे पास डायबिटीज का पेशेंट है, इसको ओबेसिटी है, इसको मैंने 6 महीने 2 साल अपने अंडर रखा, उसका बॉडी मास इंडेक्स था 38, आज उसका बॉडी मास इंडेक्स है 22। आपका उसने बीएमआर टेस्ट किया, सब चीज परफेक्ट है, ब्लड प्रोफाइल परफेक्ट है। वो पहले डिप्रेशन में था, लोनलीनेस से गुजर रहा था, आज वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, दिन भर बिजी है, एक्सरसाइज कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है वीकेंड्स पे, और ही इज वेरी हैप्पी। और वो आपको थैंक यू बोला, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू माय टीचर डॉक्टर दोसेरे, कि आपने मुझे 2 साल इतना सपोर्ट किया कि मैं आज अपनी एक फिटनेस गोल्स, एक लाइफ में मोटिवेटेड हो पाया। सो दैट इज द रियल अचीवमेंट एज अ फिजिशियन, व्हाट आई थिंक एंड आई फील इट डेली थ्रू माय पेशेंट, दे गिव ब्लेसिंग्स। तो उससे बड़ा कोई आपके लिए अमाउंट मैटर नहीं करता है। यस, इट मैटर्स इन टुडेज वर्ल्ड, बट वो आपको मिल जाता है जब आप उस लेवल को अचीव कर लेते हो। तो पैसा ऑटोमेटिकली पैसिवली आता है। यू गेट अ पैसिव इनकम, यू डोंट नीड टू आस्क फॉर मनी, यू गेट मनी आगे से ही। जी। Hello, sir. We have a question from Dr. Nanita Shri, Murgesh Babuji. Hello, sir. What are the naturopathy diagnosis techniques which we have to be skilled in treatment of diseases? देखिए, सबसे पहले आप नाड़ी परीक्षण सीखिए, आयुर्वेद में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वात पित्त कफ के कॉन्सेप्ट को भी समझिए आप, और अपना जो एक्यूपंक्चर में आप पल्स डायग्नोस सीखते हैं विद 5 एलिमेंट्स वुड एंड ऑल,
सो वो भी आप सीखे, मॉडर्न डायग्नोसिस। और तो नाड़ी परीक्षण इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेशियल डायग्नोसिस तो आपको आता ही है, आना ही चाहिए। कि आप व्यक्ति के अपीयरेंस देख के, जब आपके ओपीडी में व्यक्ति एंटर कर रहा है पेशेंट, तो आप उसकी अपीयरेंस से उसकी आधी चीजें वो उसके बैठते ही बता दें कि भाई आपको नी में प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा साइटिका हो सकता है, लंबर कंप्रेशन है, नर्व कंप्रेशन, आपको थोड़ा सर्वाइकल है, आपको मतलब तो एनकम्बरेंस आपको देखते ही पता पड़ रही है, फ्रंट एनकम्बरेंस है, बैक है, साइड है, मिक्स्ड है ना, वो आप बता रहे हैं। आइरिस डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए वेस्ट में जर्मनी एंड ऑल द यूरोपियन कंट्रीज दे हैव इरिडोस्कोप। तो आइरिस डायग्नोसिस आप सिंपल कर सकते हैं घर पे, आजकल उसके वो सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं। जस्ट यू कैन टेक अ फोटोग्राफ ऑफ द आइरिस एंड पुट इट इन द सॉफ्टवेयर एंड यू कैन बेसिकली जूम एंड सी जो आप पढ़ रहे हैं इरिडोलॉजी में लुइस कुने के, और जो भी अपने नेचुरोपैथी डायग्नोसिस में। यौगिक डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। ऑरा स्कैनिंग, आजकल टूल्स भी आ गए हैं, तो ऑरा स्कैनिंग इज हेल्पफुल। और इसमें आप क्या करते हैं, अपने अपना जो रेकी प्राणिक हीलिंग में भी वी लर्न ऑरा स्कैनिंग। सो यौगिक डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ मॉडर्न तो आपको आना चाहिए, पर नेचुरोपैथी यू प्रैक्टिस एंड लर्न। यू सी एवरी पेशेंट पल्स, यू सी एवरी पेशेंट आयरिस एंड डायग्नोज फिजिकली ऑल्सो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ नेचुरोपैथ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द मॉडर्न डॉक्टर्स, कि वो सिर्फ ब्लड टेस्ट और रिपोर्ट देख के करते हैं। नाउ दे आर इवन लेफ्ट द डूइंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। वी डू द एसएलआर टेस्ट, लेसिग्यू टेस्ट, साइटिक पेशेंट आया, हमें फिजिकल डायग्नोसिस भी करना है, साथ में नेचुरोपैथी भी करना है, यौगिक डायग्नोसिस भी करना है। एंड दिस डायग्नोसिस विल क्रिएट द डिफरेंस। आज जो मैं आपको रिसर्च कर रहा था, एक पेशेंट पे आपने डायग्नोसिस किया कि यस इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट कम है, उसका बड़ा तो आपने उसका 30 to 60 डिग्री लिखा, 60 to 90 डिग्री एसएलआर में लिखा। सो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग एन एविडेंस आउट ऑफ द डायग्नोसिस दैट दिस मच चेंज। ऐसे आयरिस डायग्नोसिस किया, मान लीजिए उसके कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन था, आपने चेक किया, अब उसका ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, वीएलडीएल सब नॉर्मल आ गया, एचडीएल अच्छी रेंज में आ गया है 3 मंथ्स की आपकी डाइट फॉलो करने के बाद। तो आपने ये देखा, आपने उस डायग्नोसिस को भी प्रूफ किया कि यस इरिडोलॉजी इज हेल्पफुल, कि इसमें मुझे कोलेस्ट्रॉल रिंग दिखी थी, अभी वो क्लियर है 3 महीने बाद। पेशेंट की ब्लड प्रोफाइल में पहले डिसलिपिडेमिया था, आज इसका डिसलिपिडेमिया ठीक है। सो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग व्हाट यू कैन लर्न। नेक्स्ट प्लीज। Dr. Nutana, she wants to know that reliable naturopathy equipment sellers who who have each and every equipments. देखिए आपको ये सर्च करना पड़ेगा, बट मुझे अभी जो लगा है, एक वाटर लाइफ करके कंपनी है, वो अच्छा है। बाकी बैंगलोर में 2-3 है, इंडियन फाइबर, जेमिनी फाइबर, दे आर क्रिएटिंग अ गुड। और दिल्ली में ठीक है, शर्मा फाइबर इज ऑल्सो ओके। बट आप पर्सनली उसको ना एक्सपीरियंस करके क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स लीजिए आप। क्या होता है, जैसे हमने ऐसे ले लिया जल्दबाजी में बड़े, तो कभी उसका कलर निकल जाता है फाइबर का, कभी उसमें क्रैक आ जाते हैं, डेंट आ जाते हैं। थोड़ा हैवी पेशेंट, 150 किलो का बैठ गया टब बात में, तो पानी बाहर निकल जाता है। सो ट्राई टू टेक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, और कितना बजट है तो उसके अनुसार आप उसको लीजिए। एंड देयर आर मेनी वेंडर्स, जस्ट ट्राई एंड टेस्ट एंड देन सी, देन यू परचेज इट। डोंट जस्ट गो फॉर द एडवर्टाइजमेंट, ये मेरा कहना है। Okay, you can look for Nature Life Bangalore. It is one of यस। the leading equipment sellers. So हम्म। I think you can just check that. Question from Akanksha Sharma ji. Sir, what to do in case of emergency? How naturopathy can be of help? देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इन अवर शांतिवना धर्मस्थला, इन अवर परिका, इन अवर सौख्यवना, एंड इवन इन बैंगलोर शेमावना, यहाँ 3 जगह मतलब हमारे स्टूडेंट रहे हैं। इवन इन पतंजलि योगग्राम निराम है, जहाँ पे मैं लगभग 8 साल के मैं हूँ। आप ये देखिए हर जगह जो है, बेसिकली वी कैन एक्चुअली डील विद मोस्ट ऑफ द इमरजेंसीज जो नेचुरोपैथी सेटअप में आती है। वो क्या आती है, हाइपोग्लाइसीमिया, यस, आपने उसको नारियल पानी दिया, हनी वाटर दिया, यू कैन ट्रीट। पेशेंट गेट्स नोजिया, वॉमिटिंग, आपने कुंजल कराया, क्योंकि चाय कॉफी के एडिक्ट ऑलमोस्ट सारे पेशेंट होते हैं। उनको हेडेक्स हुआ, हॉट फुट दिया, एक्यूप्रेशर दिया आपने, थोड़ा हेड मसाज, कॉम्प्रेस दिया, हेडेक कैन बी क्योर्ड। सो बेसिकली फीवर, आपने उसको कोल्ड नीम एनिमा दिया, आइस कोल्ड नीम एनिमा, फुल वेट शीट पैक दिया और स्पॉन्जिंग दिया, फीवर इज गॉन। है ना, कोल्ड कफ एलर्जीज है, आपने उसको एंटी कोल्ड थेरेपी दिया, चेस्ट पैक दिया, थोड़ा मसाज दिया, एंटी कोल्ड थेरेपी, और उसके बाद आपने उसको ओजीजीटी कंप्रेस दिया, नस्य कर दिया, फेस मसाज करके बादाम रोगन से स्टीम दे करके आपने 2-2 4 4 सरसों के तेल डाल दिया, बादाम रोगन तेल, उसके बाद स्टीम दिया, गार्गल दिया, तो उससे आपका जो है
ऑलमोस्ट आप मान के चले 50 to 80% जो एक्यूट डिसीज हैं या एक्यूट इमरजेंसीज हैं दैट वी कैन मैनेज। किसी को हाइपोटेंशन हो गया तो आपने पैर ऊपर किए, उसको ओआरएस दिया या सॉल्ट वाटर दिया या कुछ आपने खाने को ऐसा दिया। तो दीज आर many are protocol. We are also publishing a small book of there are many, but we are producing an international recognized integrative uh, प्रोटोकॉल फॉर बेसिक इमरजेंसीज, है ना। उसके बाद इससे ज्यादा कोई इमरजेंसी मान ली, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है, पेशेंट फेंट हो गया, किसी को एमआई आ गया, आपको इमरजेंसी मेडिसिन के सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए। लाइक बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का है, many other institutes are doing it for free. So every naturopathist should learn the CPR and all the emergency technique, embu bag technique. तो ये आना चाहिए आपको। इसके बाद होता है एडवांस्ड लाइफ केयर सपोर्ट सिस्टम। जब आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं कहीं भी, यूरोपियन कंट्री, यूएस, यूके, यूएई, अगर आप एज ए नेचुरोपैथिक फिजिशियन जा रहे हैं तो यू शुड हैव दीज टू सर्टिफिकेट, एडवांस लाइफ केयर सपोर्ट एंड बीएलएस, और उसके बाद एडवांस लाइफ। तो दैट इज 4 से 7 दिन का होता है, तो किसी भी एलोपैथी हॉस्पिटल में आप वो लर्न कर सकते हैं, जिसमें यू नीड टू डील विद द बेसिक इमरजेंसी इन द एलोपैथिक वे, वो जो हर इंसान को आना चाहिए, एज अ फिजिशियन सबको आना चाहिए। इसके बाद फिर आप नेचुरोपैथी से यू कैन एक्चुअली विद ऑल नेचुरोपैथी and some ayurvedic medicines also you should learn, and electrolyte, some nutraceutical, you can actually manage multiple acute emergencies what we face in a yoga, naturopathy and integrative medical care hospital or OPD and IPD. Yes. Sir, do we need Panchkarma certificate to practice Panchkarma? देखो, आपको मिल रहा है बीएन वाइस बेसिस पे, केरला से या कहीं से 1 महीने 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स आप करें तो बिल्कुल करना चाहिए। आई प्रिफर एवरी बीएन वाइस शुड लर्न पंचकर्मा, कि आपको वमन विरेचन आना चाहिए और सारी चीज, रक्त मोक्षण, ये सब आना ही चाहिए। बिकॉज दिस इज नॉट नॉट सम सुपरफिशियल और अदर साइंस। योगा, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा इज लाइक, आयुर्वेदा इज अवर एल्डर ब्रदर, लाइक, है ना। तो आपको ऐसा नहीं, उनको भी हमारा आता है, देखो डाइट सीख रहे हैं वो लोग, वो लोगों को मसाजेस सीख रहे हैं, है ना। दे आर लर्निंग मल्टीपल थिंग्स इन द नेचुरोपैथी, दे आर डूइंग द योगा इन द श्वास व्रत। तो ऐसा नहीं कि उनको हमारा नहीं आता है। सो वी शुड ट्राई टू लर्न मैक्सिमम। अगर आप नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं, आपको कुछ पंचकर्मा आता है, आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है केरला से या कहीं से भी, 3 मंथ 6 मंथ, और आप उसको प्रैक्टिस में ले रहे हैं, तो दैट इज नो हार्म। और आपने पास थेरेपिस्ट आपके पास है, आपने डिप्लोमा इन पंचकर्मा वाला थेरेपिस्ट ले लिया है, तो फिर आप ऑयल कॉम्प्रेस, ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, सारी चीजें दे सकते हैं। आप शिरोधारा ऑफिशियली आप लीगली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू शुड लर्न डेफिनेटली, एवरी बीएनवाईच मस्ट लर्न द पंचकर्मा थेरेपीज एंड इमरजेंसी मेडिसिन। यस, नेक्स्ट प्लीज। So, what would be minimum cost to start OPD in a small town? देखिए, छोटी जगह में आप देखें, अगर बी और सी टायर सिटीज हैं, मतलब तो उसमें आप, अगर आपका खुद का स्पेस है, मतलब 5 6 रूम अगर आपके पास है, या मिनिमम 4 5 रूम भी हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 से 5 लाख में, जो मेरा एक एस्टिमेट है। मिनिमम इंस्ट्रूमेंट से सिर्फ हम मसाज टेबल से, स्टीम बॉक्स से स्टार्ट करें, फिर हाइड्रोथेरेपी ले लें, जैसे जैसे आपको थोड़ा थोड़ा। या फिर आजकल गवर्नमेंट जो है लोन्स भी दे रही हैं, आप डॉक्टर्स को तो इजी लोन्स मिल जाता है। So if you have a valid degree and registration, you can take a loan at a minimal price from the government of India, different banks. So वो भी आपके लिए अच्छा है कि आप एक इंस्ट्रूमेंट ले लें, 4 6 महीने में उसका पैसा चुका लें, पेशेंट के थ्रू थ्रू देख करके, फिर आप और इंस्ट्रूमेंट ले लें। सो मिनिमम देखिए, 2 लाख में एक मिनिमम बजट बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा पूरे भारत में, विश्व में, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक क्लिनिक के लिए 2 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आइडियल क्लिनिक होनी है तो 5 से 10 लाख, 10 लाख का बजट है और आपकी खुद की स्पेस है तो अच्छा। नहीं तो आपने रेंटल भी 15 20 हजार में स्पेस ली है, और आपने उसमें 10 लाख इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किए हैं, और एक अच्छी गुड पॉजिटिव वाइब्स की स्पेस बनाई है, रोज उसमें प्रेयर, चैंटिंग, म्यूजिक थेरेपी हो रही है, कलर थेरेपी हो रही है, तो इट्स ए गुड मॉडल। तो वो धीरे धीरे ग्रो करता ही है, इफ अ पेशेंट गेट्स ए गुड रिलीफ एंड गुड पॉजिटिव वाइब्स एट योर प्लेस। यस प्लीज, एनी नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, sir. We have small appreciation from Neha Sharma ji, intern, and she is asking what advice I can get for as a BN Vice intern. देखो, इंटर्न तो, इंटर्न इज 100%, 100% निकल करना है, सीखना है। इंटर्न शुड रन, आपने एमबीबीएस इंटर्न्स देखे या जेआर देखे?
तीन तीन दिन तक दे बी ऑन ड्यूटी। और हमारे इंटर्न्स का माइंडसेट क्या रहता है, चलो सुबह 9 बजे ओपीडी में जाएंगे, योगा भी नहीं करेंगे, 4 साल बहुत कर लिया, और शाम को 5 बजे के बाद फ्री घूमना है, खाना पीना है, घूम ऐसे। तो इस माइंडसेट से इंटर्नशिप करने से कोई फायदा नहीं है। हमारे पास, मेरे पास लगभग 30-40 इंटर्न हर मंथ आते हैं पतंजलि वेलनेस में, और डिफरेंट सेंटर्स में भी हम भेजते हैं हमारे इंटर्न्स। तो मेन थिंग, वी डू अ स्क्रीनिंग फॉर टेकिंग एन इंटर्न। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब मेरे पास इंटर्न आया और उसको बीपी भी चेक करना नहीं आता अपना नॉर्मल स्पिग्नोमेनोमीटर से, तो और इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर हम जबरदस्ती थोड़ी सिखाएंगे। तो अगर आप इंटर्न अच्छा बनना है तो 4 साल मेहनत करो। और इंटर्नशिप में आपको ये भूल जाना चाहिए कि मेरा कोई लीव है, छुट्टी है, ये है 365 दिन, मतलब दिस इज योर लाइफ अपॉर्चुनिटी, जहां पे पेशेंट मिल रहे हैं, जहां पे थेरेपी करने को मिल रही है। और इंटर्नशिप में ये मत रखो मैं मसाज नहीं करूंगा, मैं हाइड्रोथेरेपी नहीं करूंगा। जहां आपको थोड़ा सा भी स्कोप मिल रहा है कि यहाँ मैं कर सकता हूँ, थेरेपिस्ट को अपने गुरु बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। थेरेपिस्ट तो पुराना है ना, 20 साल का थेरेपिस्ट है, उसको सारी चीज आती है, उससे सीखो। शेफ जो है आपके किचन में हॉस्पिटल में, उससे सीखो कि भैया मुझे प्लीज ना ये बनाना सिखा दो, कैसे बनाते हो आप बॉइल्ड लौकी, है ना। तो ये चीजें जो है, ये अंदर से इंटरेस्ट से रहती है। हम लोग भी हमारी इंटर्नशिप में यही सीखे थे, शांति वना में, सौख्या वना में, हर हर थेरेपिस्ट से हम सीखे थे बेसिकली। इवन अवर थर्ड ईयर पहले बोलते थे अन्ना हमें मसाज ये सिखाओ, उनके साथ करते थे। देन वी डिड 300+ मसाज। फिर बाद में पेशेंट बोलते थे कि आप तो इनसे भी अच्छा कर रहे हो। सो दैट इज द थिंग विच वंस यू पुट योर सेल्फ 100%, देन ओनली यू लर्न। ऐसे दूर से देख के कोई नहीं सीख सकता कि पानी में उतरो ही नहीं और मैं स्विमिंग सीख जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो बी आप एग्जाम्पल के लिए एमबीबीएस डॉक्टर्स को देख लो, उनके इंटर्न्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सेम वे यू हैव टू वर्क आउट एंड लर्न ईच थेरेपी एंड डू मैक्सिमम पेशेंट एग्जामिनेशन। तभी आप एक अच्छे इंटर्न बनेंगे। तभी इंटर्नशिप खत्म करके जब आपके पास प्रोविजनल डिग्री और रजिस्ट्रेशन होगा, तब अच्छे समाज के लिए एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे आप। Same question was by Anjali ji, and I think that's answered. We have a question from Dr. Mega MKG that any particular brand of food supplements or functional medicine that can be prescribed to the patients in naturopathy clinic. देखो, वैसे तो बहुत सारे आ रहे हैं आजकल नए नए, पर हमारे पतंजलि के भी मैंने देखा है, न्यूट्रेला हमारी ब्रांड है। एंड लाइक B12, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वर्ल्ड का बेस्ट नेचुरल B12 पतंजलि न्यूट्रेला का है। क्योंकि आई हैव सीन, जिसका B12 पेशेंट आया 180 है, एंड 1 मंथ 30 डेज वी हैव गिवन 1 1, एंड 30 डेज बाद ब्लड टेस्ट किया, B12 कितना आ गया, 600 to 800 रेंज। So that I have seen on thousands of patients. So plant-based nutraceutical is good, minimal chemical and organic, जितना natural हो। तो ऐसे ब्रांड्स जैसे पतंजलि है जो एविडेंस बेस्ड हो, जिसके रिसर्च पेपर्स हों। ऐसा नहीं वो थर्ड पार्टी से बनवा रहे हैं और उसके बाद दे रहे हैं, उसमें कितना कंटेंट मिल रहा है पता ही नहीं है। विदाउट लैब रिपोर्ट यू डू नॉट एक्सेप्ट एनी ब्रांड। सो learn with the big brands, go with the big brand, then later on you can start on your own nutraceutical. And nutraceutical और food supplement is a part of naturopathy, ये चीज आप सबको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये आयुर्वेद में भी नहीं है। एलोपैथी में दे डू नॉट लर्न ऑल द सप्लीमेंट्स बेसिकली, के B12 का मे बी लर्निंग, बट एक्चुअली वी हैव दिट्स इन आवर कोर्स करिकुलम, फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर हमारे न्यूट्रास्यूटिकल टॉपिक है। एमडी मैंने नेचुरोपैथी में किया है, तो उसमें तो हमारा सब्जेक्ट था न्यूट्रास्यूटिकल। सो यू कैन एक्चुअली एडवाइज द फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल एज पर द ब्लड रिपोर्ट, एज पर द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। डू नॉट गिव एक्सेसिव। कई बार हाइपर विटामिनोसिस, D3 B12, these are very risky things, so you should have a sense and then practice nutraceutical. Learn with good brands. Next please. Another question from Chandni Shahji. Hmm. What is your vision about a healthy lifestyle adaptation as Sanatan Dharma in the this fast life? देखो आजकल लोग, आप देखो, मैं मेरे पास कल ही एक क्रोएशिया से लेडी आई, एंड शी इज एक्चुअली फॉलोइंग द होल सनातन धर्मा। उठ करके पूरा जल्दी उठना, अपना अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज 1 घंटे पहले उठना, जल्दी से फ्रेशन अप होके स्नान करना, उषा पान करना, पानी पीना सुबह का, उससे लेकर के और सूर्य, उसके बाद क्लीनिंग कर देना, हर चीज अरेंज करके। सूर्योदय की पहली किरण के साथ दे स्टार्ट विद यज्ञ, जिसको क्या बोलते हैं, अग्निहोत्र बोलते हैं। एंड दे स्टार्ट विद द योगा थेरेपी, योगा सेल्फ योगा, मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं, दे डू द फिजिकल योगा, देन योग निद्रा, त्राटक, मड पैक, एवरीथिंग। एंड देन उसके बाद वो हवन करके पूजा अर्चना आराधना सारी चीज करके,
और सूर्य को अर्घ देना, जो सन सैल्यूटेशंस हैं, सूर्य नमस्कार करना उस टाइम। सो दीज एंड ऑल दे आर डूइंग, द वेस्ट वर्ल्ड इज डूइंग। हम क्या करते हैं, वेस्ट को कॉपी करते हैं, अमेरिका क्या कर रहा है, यूके क्या कर रहा है। सो बेसिकली रशिया, यूके, यूएस, every good country, Australia, Japan, everyone is accepting and adapting Sanatana Dharma because it's a scientific and evidence-based lifestyle. Whatever scientist, उस पहले ये सनातन धर्म मतलब कोई बंद के नहीं है, दिस इज अ नेचर धर्मा, फॉलोइंग द मदर नेचर इज द सनातन धर्मा। सो अगर उसके साथ हम नेचर के साथ अट्यूनेटेड रह रहे हैं, सो वी आर नॉट गेटिंग एनी डिसीज, हम उसकी प्रोबेबिलिटी भी जीरो कर रहे हैं, एंड वी आर लिविंग अ 100% हेल्दी एंड मेंटली वेल, खुश होके जी रहे हैं, आनंदमय कोश में जी रहे हैं। दैट इज द एम ऑफ अ लाइफ, कि हर व्यक्ति जो एकदम कंटेंटेड होके खुश होके जिए, और उससे पॉजिटिव वाइब रेडिएट हो, पॉजिटिव वाइब हर जगह। सो दैट इज द एम। तो आप ये फॉलो करेंगे, आपके पेशेंट्स को सिखाएंगे, डेफिनेटली इट विल वर्क आउट। नेक्स्ट Any प्लीज। specific software for iris diagnosis? There are few. You can search it online. Iridology, one two German software is there. And some are free, some are paid. So you can actually search the paid version at the minimum price. So that there you can actually scan with the iridoscope. आजकल छोटे छोटे iridoscope भी आ गए जो just like a camera, and you can get an image of the iris, both the iris, right and left, and they can actually read it through the AI that this and all is there. What we read in the book, same thing they can actually help you in diagnosing. Perfect. So, any books for pranic healing and yogic healing? These are all देखिए practical science. So pranic healing we have learned from our Shivarna sir, Shiva Prasad Shetty sir, and he have taught it us well. So मुझे लगता है रेकी is very much more effective. मतलब उसमें क्या है, हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, किसी और की नेगेटिविटी नहीं आ रही है। सो रेकी यू कैन लर्न, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है टू लर्न द रेकी। सो रेकी लेवल 1 2 3 4, रेकी ग्रैंड मास्टर, एंड यू शुड प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ द व्हाइट लाइट कवरिंग, and Reiki should be on, give Reiki to anywhere it's needed. So ये आप सबको प्रैक्टिस करना चाहिए। All BNY's doctors must become Reiki channels. आप वो कहीं से सीखे, अच्छे एक्सपर्ट से सीखे। 2 दिन से 4 दिन 7 दिन का लेवल 1 होता है, फिर आप हर साल लेवल 2 3 4 आप सीख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस। आई डू प्रैक्टिस रेकी, यस। Basic setup for online naturopathy clinic, Chandni Shaji. हाँ देखिए, ऑनलाइन क्लिनिक के लिए आजकल बहुत सारे अच्छे ऐप्स आ गए हैं जिसमें एलोपैथ्स, और इसमें डिफरेंशिएशन नहीं रखा है, एनी रजिस्टर्ड डॉक्टर इन इंडिया कैन प्रैक्टिस। तो आप उसमें ऑनलाइन कम्युनिकेट करें, और ऑनलाइन इंस्टाग्राम से आप मार्केटिंग करें, इंस्टाग्राम फेसबुक से, और लोकल एरिया में आपके टारगेटेड क्लाइंट्स तक आप पहुंचे, और वीडियोस बनाते रहें, और उसके पेशेंट्स के भी आपके जो फीडबैक वीडियोस हैं विद और विदाउट फेस आप बनाएं, उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन, और आपकी जो रिपोर्ट्स एंड प्री एंड पोस्ट जो पेशेंट की है जिसमें इंप्रूवमेंट है, या बी बॉडी मास इंडेक्स है, आपकी जो बीएमआर वाला स्केल होता है, तो ये सब आप उसमें डेटा रखें, और उसी को पब्लिश भी करें जर्नल्स में, विदाउट नेम पब्लिश होते हैं जर्नल्स में, केस स्टडीज और केस सीरीज पब्लिश करें। सो दिस इज हाउ वी डू द ऑनलाइन मार्केटिंग पार्ट। एंड मैक्सिमम आप उसमें इनिशियल कंसल्टेशन फ्री रखें, 5 10 मिनट कोई व्यक्ति आपसे फ्री कंसल्ट करेगा, भाई 5 मिनट के, मैम मुझे ये दिक्कत है, आप हेल्प कर सकते हैं इनिशियली। उसके बाद फिर आप चार्ज करें, भाई मैं पूरा डिटेल आपका डाइट प्लान बनाऊंगी, आपको थेरेपी प्लान या योगा प्लान मैं घर के लिए दूंगी, तो माई चार्ज इज लाइक 500 रुपीज, देन वीकली आई कैन चार्ज यू 500, सो आई फॉलो यू अप। सो दिस वे में यू कैन कनेक्ट विद योर क्लाइंटल। अगर आपके 200 क्लाइंट्स भी अच्छे हो गए जो रेगुलर आपको फॉलो कर रहे हैं, एंड यू आर एन एग्जाम्पल फॉर देम, सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। लाइक यू थिंक यू कैन बिकम लाइक अ इंश्योरेंस कंपनी, कि आप हर व्यक्ति से साल का 12,000 इंश्योरेंस ले रहे हो एज अ योगा नेचुरोपैथी फिजिशियन, और उनको जब जरूरत पड़ रही है उनकी उनकी फैमिली को आप ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, और दे आर गिविंग एवरी ईयर सर्टेन अमाउंट, और खुश हो रहे तो और दे रहे हैं आपसे, उनको ज्यादा फायदा हो रहा है। तो आप सोचिए कि आपके पास ऐसे 200 300 पेशेंट हो गए, तो आपको तो 3 से 6 लाख रुपए तो मंथली पैसिव इनकम आ रही है। समझ रहे हैं, आप आराम से ट्रैवल कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, एंड यू आर अर्निंग मनी ऑल्सो जस्ट बाय ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड प्रॉपर योगी कंसल्टेशन, आपके सुपरविजन में उनको डाइट प्लान, उनका ब्लड प्रोफाइल चेक करके। सो दैट इज अ वेरी इजी, और मैंने बहुत सारे अपने जूनियर्स को गाइड किया है, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मेरे को खुद बताते हैं कि सर हमारा तो 2 3 लाख तो ऐसे ही हो जाता है, और बुक लिख रहे हैं, दे आर डूइंग रिसर्च पेपर्स फ्रीलांसर की तरह। सो मेनी आर देयर, एंड दे हैव लर्न कायरोप्रैक्टिक। एक एक सिटिंग के दे आर गेटिंग 10,000 रुपीज फॉर 1 आवर ऑफ कायरोप्रैक्टिक सेशन। तो ऐसे भी मेरे कुछ एक जूनियर्स हैं जो मुझे सब मिलते रहते हैं, बताते रहते हैं, जो कभी ना कभी मैंने कहीं लेवल पे मोटिवेट किया हो या इंटर्नशिप कराई हो। तो पीपल कीप मीटिंग मी इन दैट वे ऑल्सो। यस।
Perfect. So I think we have taken sufficient question and time. The clock is clicking and the questions Yes. end for now. So I'll personally suggest you to take up Dr. Kanak's number and then directly connect with him for all the question and answers. Most of Sure. the questions were beautifully answered, and regarding the interns advice, and then for the OPD setup, what should be done already advice was given to you, and what intern should learn, what a fourth year student should learn. Everything was dealt very beautifully. I think if you have some more questions, you can ask, connect with him in person. So, Sure. हेलो हेलो सर। हाँ जी, बोलो। नमस्ते सर, नमस्ते डॉक्टर नमस्ते। कनक सोनी सर, डॉक्टर विवेक भाटिया सर। मैं जस्ट दो लाइन में मेरा जो थैंक वोट है वो बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस सेशन। जो भी सर ने 1.5 आवर में जो बोला, जो बताया, इवन माइन्यूट डिटेल्स अबाउट हाउ द क्लिनिक शुड बी, व्हाट ट्रीटमेंट्स, इवन मेजरमेंट, it is like very grateful for that. And even for Dr. Vivek Bhartiya sir for arranging these sessions and gathering the community and making this platform available for the community. Thank you. And thank you everyone for joining, and very grateful, looking forward for such a sessions. Thank you sir. thank you so much, थैंक यू Dr. डॉक्टर सर। That was your kind words. And I think, sir, Dr. Kanak, I was listening to each and every advice you had been giving to everyone. You were so patiently listening, and the way you beautifully explained, there's a lot of appreciations in the chat box, which I can see over here, that how beautifully you have answered every question. And I think you have a lot of patience which you have developed within you. And I really think that BNYS community can be helpful to each other in this some method. What we are doing, we are trying to connect all the professionals, the naturopaths, successful naturopaths across India, abroad, to come forward and guide the upcoming BNY students and the doctors so they can excel in their field. And in the meanwhile, they also get connectivity options. They can connect to you directly for the further guidance. And I know यस। the BNY's doctors had been always available to help each other. So this is एग्जैक्टली सर। thing we had been doing. So I'm really thankful to you from my bottom of my heart for taking up such a long time for the session. I know Sundays are for the family time, and still you are offering your time for the development of community. It really means a lot, and I am very thankful to you for your presence, and especially such a wonderful learning what you have given to the students and the doctors today. And I also thank all the present doctors and students who had been into the session, took out their time. And we'll be learning more sessions. We had a portion on chiropractic. So I'll let you know that we are coming up a chiropractic session on 7th of December. So those questions you have asked for chiropractic will be also answered. And each and every questions are considered equally responsible. And we'll be getting to you in the next session, which is coming up as a naturopathy clinic setup. So see you next. Till then, have patience. Have a wonderful day. Thank you so much, everyone, for joining, and especially Dr. Kanak Soni sir. Thank you. Thank you, Vivek Bhartiya Bhaiya, and all the students and doctors who have joined for today's session. It's all initiation by our respected Vivek Bhaiya, कि उनके कारण सब लोगों को इतना सीखने को मिल रहा है ऑनलाइन, and all are actually uniting, all BNYS community uniting. It's a great effort by you. We are always with you in each effort. Thank you, Bhaiya. Everyone. Thank you. Namaste. Thank you, sir. Thank you, bhai. Ravi ji. सर बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया सेशन था। रियली वी ऑल एंजॉयड। लास्ट तक देर वॉज अराउंड 70+ participant from 2 hours they were listening you. Thank you.